बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ है साइम खान। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? लेकिन हम आपको बताते हैं कि पूरा लास्ट वीक जो गुजरा मार्का हक से मुतालिक हमने देखा अहम तकरीब का इनेकाद किया गया। GHQ में बड़ी पुरवकार तकरीब हुई, जो कि कल भी हम आपके साथ थे, उस हवाले से आगाह कर रहे थे। रात गए भी बड़ी अहम तकरीब का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से आपको ये भी बता दें कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि पाक फजाइया के शाहीनों ने दुश्मन पर धाक बिठाई, भारत के 8 तैयारे मार गिराए। तो नाउ इट्स ऑफिशियल, अब ये कंफर्म हो गया है। और जो प्रेस ब्रीफिंग भी दी गई थी हमारी मुसल्लह अफवाज के रिप्रेजेंटेटिव्स की जानिब से, उसमें भी यही बताया गया था। इस्लामाबाद में मार्का हक की तकरीब से खिताब कर रहे थे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी। कहते हैं भारत ने यकतरफा तौर पर सिंध-तास मुआहदा मुअत्तल करके आबी दहशत गर्दी की है। पानी हमारे 24 करोड़ अवाम की लाइफ लाइन है। तो सदर आसिफ अली जरदारी इस मौके पर क्या कह रहे थे वो आपको दिखा देते हैं। India chose unprovoked aggression on the basis of false flag of Pelgram incident. Launched an airstrike on Pakistan. Our nation and armed forces under the dynamic leadership of Field Marshal Saeed Asim Munir gave a calibrated and shocking response to the Indian aggression. Pakistan Air Force downed 8 enemy aircrafts. Issue of illegal Indian occupation of Kashmir needs to be resolved in accordance with UN resolution. Unilateral and illegal attempt by the Indians to suspend Indus Water Treaty amounts to hydroterrorism. Water is a life for millions of our citizens. اچھا جی، فیلڈ مارشل سید آصم منیر یہ کہتے ہیں کہ ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے، آخری دہشت گرد کے خاتمے تک دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر GHQ میں تقریب سے خطاب، اور انہوں نے کہا کہ بھارت پاکستان سے روایتی جنگ ناممکن تصور کرتے ہوئے پھر دہشت گردی کی گھناؤنی روش کا سہارا لے رہا ہے، اور دہشت گردی نہ صرف بھارت بلکہ افغانستان کی سرزمین سے بھی کی جا رہی ہے، اور افغانستان سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ وہ اپنی سرزمین سے دہشت گردوں کے مراکز ختم کرے۔ کیا کہا انہوں نے، آپ کو سنواتے ہیں۔ اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں تقریب سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے بھی خطاب کیا۔ کہتے ہیں پاکستانی شاہینوں کا غلبہ، بھارتی طیاروں کا ملبہ، یہ ہے جنگ کا مختصر خلاصہ۔ تو جنگ کا مختصر خلاصہ بتاتے انہوں نے کہا جی کہ 10 مئی کو پاکستان کے سچ کے بیانیے کی فتح ہوئی۔ 4 گھنٹے کے اندر ہی بھارت جنگ بندی کی درخواست کرنے پر مجبور ہو گیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت کو ہمیشہ سنہری حروف میں یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم کے ایئر چیف اور نیول چیف کو بھی خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے کہا جنگ بندی کے لیے امریکی صدر ٹرمپ نے اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے سعودی عرب، ترکیہ، چین اور دوست ممالک کا بھی شکریہ ادا کیا۔ تو ساتھ ہی انہوں نے 10 مئی کو یوم مارکہ حق کے نام سے منسوب کیا، اس کا اعلان کیا۔ ذرا سنتے ہیں وزیر اعظم کیا کہہ رہے تھے۔ بات کر لیتے ہیں اسی حوالے سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار ایئر کوموڈور خالد چشتی صاحب۔ بہت شکریہ خالد چشتی صاحب پروگرام کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ہیو یو آن دا پروگرام۔ مارکہ حق کے بعد پاکستان کی دفاعی اور سفارتی پوزیشن خطے میں ہی نہیں بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ورلڈ وائڈ گلوبلی کافی مستحکم ہو گئی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ موجودہ حالات میں پاکستان سے اگر موازنہ نہ کریں، کمپیئر کریں، بھارت کو کہاں پر دیکھتے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ صدف اور سائم، آپ نے انوائٹ کیا، اور اٹس آلویز اے پلیجر ٹو جوائن یور پروگرام۔ اس میں مجھے بھی کوئی شک نہیں ہوتا۔ جہاں تک آپ پاکستان اور انڈیا کی بات کر رہے ہیں، دیکھیے ہمارا تو نہ مئی 2025 میں کوئی ایسا ڈیزائن تھا ہیجمونک، کوئی ریجنل، ہم نے کوئی انفلوئنس کریٹ کرنا ہو، کوئی زیادہ ریلیونس گین کرنی ہو۔ ہم تو ڈیفینس کرنے گئے تھے اور آبویسلی پھر اوفینس کر کے آ گئے۔ ڈیفینس اس لیے کر کے آگے تھے کہ ہم سوورینٹی کو بریچ نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، اور اوفینس اس لیے کیا تھا کہ دشمن کو ایک نیو نارمل بنانے سے روکا جائے آنے والے سالوں کے لیے بھی۔ اس کو پتا ہو کہ کیا قیمت دینی پڑتی ہے۔ اگر رات کو 12:30 بجے اگر آپ 85 جہاز بھیجیں گے تو پھر ایک قیمت آپ کو دینی پڑے گی، کیونکہ آپ ہماری سوورینٹی اور ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل ہم نے سیکیور کرنا تھا۔ آج بھی ہم الحمدللہ تیار بھی ہیں، اور جیسے اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ جی کوئی دشمن سوچ سکتا ہے یا حملہ کر سکتا ہے، تو میں کہتا ہوں اور کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ جی سوچ سکتا ہے، اس سوچنے پر کوئی پابندی نہیں ہے اور حملہ کرنے پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔
مسئلہ یہ ہے کہ پھر ہم پر جواب دینے میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بھی ہولڈ بار نہیں کیا. آپ نے دیکھا سال گواہ ہے 10 مئی کو ہم نے کیا کیا، اتنی زیادہ پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کی کہ پھر وہ آنے والے وقتوں میں یاد رکھے گا. ہماری تمام تیاری سائم جس طرف آپ پوچھ رہے ہیں وہ تمام کی تمام ڈیفینسو نیچر کی ہوتی ہے، لیکن خاص طور پر میں ایئر فورس کا آپ بتا سکتا ہوں. 78 سالوں سے دیکھیے پاک فضائیہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں یہ ڈیفینسو ہے اور ری ایکٹیو رہی ہے ہماری ایئر فورس. اب یہ نہیں رہی ہے، اب یہ ڈسرپٹیو ہے، یہ گیم چینجر ہے، اور یہ ایک ایسا انیبلنگ انوائرمنٹ الحمدللہ آرمی اور نیوی کے لیے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جنگ شروع ہونے کے ساتھ ہی، کہ وہ الحمدللہ ان کا morale کہیں ہوگا. آپ خود ایگری کریں گے کہ اگر ہندوستان 10 اور 11 تاریخ کے بعد ہمارے ساتھ آل آؤٹ جنگ کرتا بھی زمینی فوج سے یا بحری فوج سے، تو انڈین فورسز کا کیا morale ہوتا جب 8-0 ہو چکا تھا. 34 ایئر بیسز پر حملہ کیا اور مختلف 34 ایئر بیسز اور انسٹالیشن پر حملہ کیا تھا ہم نے کامیابی سے. اور ایک بات ضرور میں ایڈ کرتا چلوں کہ ہم نے یہ سب کچھ ود ہیوملٹی اور گریس کیا ہے. میں اپنی ڈاکومنٹ کی کبھی 6 تاریخ کو ایک ریلیز کی ہے اپنے چینل پر، اور میں 1 سال سے ریسرچ کر رہا تھا 8-0 کے بارے میں. میں اس میں گزارش بھی کر رہا تھا پاک فضائیہ سے حملی کہ آپ کو ری وزٹ کرنا چاہیے. 8-0 ہو چکا ہے، کیونکہ میں ریسرچ کے دوران مجھے پتہ لگا کہ یہ 6-0 نہیں 8-0 ہے. اس کے اندر جو ہیوملٹی میں بتانا چاہ رہا ہوں سائمہ آپ کو، وہ یہ کہ 10 تاریخ کو ہمارے ڈرونز نے آگرہ کے ایئر بیس پر ایک A50 جہاز، یہ ایئر بورن ارلی وارننگ جہاز ہے جو وائٹ باڈی ہوتا ہے جس لائک اے بوئنگ، یہ انڈیا کا ہم نے لاک کر لیا تھا اپنے ڈرون سے. تو A50 کو آسان تھا شوٹ کرنا، اور یہ باڈی رشیا کی ہے اور انہوں نے اسرائیلی ریڈار اس پر لگوایا ہے انڈیا نے. یعنی یہ بہت ہی ایک اسٹریٹجک ویپن تھا اگر اس کو ہم ناک آؤٹ کر دیتے. پاک فضائیہ کے سربراہ اس وقت آپریشن روم میں تھے، بلکہ اس وقت نہیں، پچھلے 20 دنوں سے وہیں موجود تھے. جب ان کو بتایا گیا کہ ہم نے لاک کر لیا، آئیڈیلی ہم شوٹ کر سکتے ہیں، تو انہوں نے اس ڈرون کو پل بیک کرنے کا اور اس اٹیک کو پل بیک کرنے کا حکم دیا. وہ اس وجہ سے دیا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح کا اسٹریٹجک ٹارگٹ ناک آؤٹ کیا تو ہندوستان کے پاس آل آؤٹ جنگ کا جواز ہو جائے گا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاک فضائیہ اس طرح لیڈر آف ایسکلیشن ایسکلیٹ کرے یا اتنی ٹیمپو اوپر لے جائے کہ اس ملک کو خود ہم جنگ میں دھکیل دیں. تو اس کو کہتے ہیں کہ پاور ود گریس. تو الحمدللہ ہم نے تو ابھی بہت ریفرین کیا، اور ابھی 1 سال کے اندر ہم الحمدللہ کہیں آگے آ گئے ہیں اس سٹیج پہ، کیونکہ ہم نے اپنے چیلنجز کو بہت حد تک اوور کم کر لیا. یعنی کہ دس شوز کہ ہم کتنے امن پسند ہیں اور ہم ایسکلیٹ نہیں کرنا چاہتے تھے. ہم چاہتے تھے جی معاملہ ڈی ایسکلیشن کی طرف جائے، لیکن آپ نے جیسے کہ بتایا کہ بڑا اٹیک ہو سکتا تھا اور انڈیا کے لیے بھی یہ بڑا ایک سیٹ بیک بھی ہو سکتا تھا. ایک چیز اور بتائیے گا خالد صاحب، فیلڈ مارشل نے بھی اس طرف اشارہ کیا جو ابھی آپ مختلف باتوں کا احاطہ اپنے جواب میں کر رہے تھے کہ مستقبل میں جو جنگیں ہیں ملٹی ڈومین آپریشنز پر مشتمل ہوں گی، اور پاکستان کی مسلح افواج کو نئے ہتھیار ہی نہیں بلکہ نئی سوچ اور نئی حکمت عملی دے رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا جب ہم ملٹی ڈومین کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ جی صدر، ملٹی ڈومین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جب پرانے جنگیں ہوتی تھی ورلڈ وار کی 1965 71 یا دنیا نے جتنی لڑی ہیں، اس میں ہوتا یہ تھا کہ جیٹ ورسز جیٹ مقابلے ہوتے تھے، ٹینک ورسز ٹینک ہوتا تھا، شپ ورسز شپ اور سب مرین ورسز شپ. کاؤنٹ ہوتا تھا نمبر، انہی کا آپ کا مقابلہ ہوتا تھا. اب جس کو میں کہتا ہوتا ہوں یہ جنگ اب آرکیسٹریٹ کی جائے گی آئندہ، اور ہم نے کی بھی جو 2025 میں بھی کی. آرکیسٹریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جتنے ویپنز آپس میں ہیں وہ اتنے زیادہ کوہیسو ہوں، کوآرڈینیٹڈ ہوں، ویل ٹائمڈ ہوں. یعنی ہر جو آپریٹر بیٹھا ہے، چاہے وہ زمین پر ایئر ڈیفنس کنٹرولر بیٹھا ہے، ویپن کنٹرولر بیٹھا ہے، ہوا میں فائٹر پائلٹ ہے، اس کے پیچھے ایک ایئر بورن ارلی وارننگ یا ریفیولر اڑ رہا ہے، سیٹلائٹ سے پکچر زمین میں آ رہی ہے، اور زمین پر سائبر کمانڈ کے واریئرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میں صرف مثال سے واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کمپوننٹس ہیں جنگ لڑنے کے. تو یہ تمام کے تمام جب تک ایک کل پکچر نہیں رکھیں گے کہ دشمن کو ہم نے ہنٹ ڈاؤن کیسے کرنا ہے، تو سٹینڈ لون آپ جتنے مرضی ویپنز اچھے خرید لیں، اس سے وہ کوہیسو نہیں بنتی اپروچ، اور اس سے وہ ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی نہیں بنتی. اب میں مثال یہ دیتا ہوں کہ انڈین ایئر فورس کے پاس جو جہاز تھے، رافیل تھا، SU-30 تھا، مراج 2000 تھا، ون آف دا بیسٹ لیڈنگ، اگر 10 جہاز گنوں تو اس میں سے 4 یا 5 انڈین ایئر فورس میں آلریڈی موجود تھے. لیکن پھر آپ مجھ سے سوال کریں کہ وہ ایک ٹیم کی طرح لڑے، تو میں کہوں گا نہیں لڑے. ان کے اندر سب سے زیادہ کمزوری یہی ہے. اور ہمیشہ میں نے کہا ہے پورے سال کے اندر کہ انڈین ایئر فورس بڑی پروفیشنل ایئر فورس ہے، میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں
उन्होंने दूसरी गलती ये की है कि साइबर एलिमेंट को EW एलिमेंट को नहीं विजुलाइज किया। उन्होंने तीसरी गलती ये की है कि उन्होंने ड्रोन्स और अनमैन्ड व्हीकल पर उस तरह जोर नहीं दिया जिस तरह पाक फिजाई के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने सिद्धू ने आने वाले वक्त का पहले से भांप लिया कि तमाम की तमाम कन्वेंशनल अब जंगें नहीं रही, अब आपने EW, साइबर और ड्रोन्स एंड अनमैन से लड़नी है। तो ये हमारा बहुत बड़ा फर्क है जो जिसकी तरफ फील्ड मार्शल इशारा कर रहे थे। खालिद साहब, फील्ड मार्शल ने एक और बात भी कही, उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान से जो रिवायती जंग है वो अब नामुमकिन तस्वुर करते हुए दहशत गर्दी की घिनौनी रविश का सहारा ले रहे हैं, और ये जो घिनौनी रविश है ये उन्होंने प्रॉक्सी वॉर की तरफ उन्होंने इशारा किया। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी ना सिर्फ भारत बल्कि अफगानिस्तान से भी जारी है, और ये तो अब ये बात तो पाकिस्तान डे 1 से अपना मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है कि अफ़गान सरज़मीन से दहशत गर्दी के ठिकाने ख़त्म किए जाएँ, वहाँ पर जो दहशत गर्दी के कैंपसेस हैं उनको ख़त्म किया जाए। अब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान तनाज़ुर में आप चीज़ें आगे किस तरह बढ़ते हुए देख रहे हैं? हैविंग सेड दैट कि फील्ड मार्शल ने परसों ये बात कही है कि भारत अब जो है वो प्रॉक्सी के ज़रिए पाकिस्तान में दहशत गर्दी कर रहा है। जी साइम, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये हमने कॉन्फ्लिक्ट अल्हम्दुलिल्लाह जीत लिया था पिछले मई में, तो सून आफ्टर दैट मैं जिन चैनल्स पर भी जाता था, और आप जैसे कि मुझे याद है कि मैंने आपके चैनल पे एक दफ़ा कहा था, आपने पूछा था कि अब आप आगे क्या फोर्सी करते हैं, कि अब इंडिया क्या करेगा। मैंने कहा देखिए, वो हवा में मुकाबला करके इतनी बुरी तरह नुकसान उठाया, जमीन पर सफेद झंडे गाड़ दिए, समंदर में विक्रांत या कोई और शिप लाने की जरूरत ही नहीं हुई, तो एक ही ऑप्शन मैंने उस वक्त भी कहा था अपने तज्ज़िये के मुताबिक, और मैंने कहा था वो प्रॉक्सी वॉर करेगा, वो स्टैप करेगा बैक से, जो फ्रंट पे मुकाबला ना कर सके फिर वो आपको पीछे से वार करता है। और मैंने ये एक साल पहले भी यही ऑफर किया था अपना ह्यूमिलिटी के साथ तज्ज़िया, और आज भी मैं कायम हूँ कि क्योंकि देखिए जब एक मुल्क हमलावर होता है साइम, आपके पास बहुत ज्यादा इंडिया के पास इनिशिएटिव थे, बहुत ज्यादा एडवांटेज थे। यानी इनिशिएटिव वो ले सकता है, उसने जहाज कौन से भेजने हैं, जहाज भेजने हैं, सबमरीन भेजनी है, टैंक भेजने हैं, कितने जहाज भेजने हैं, फोर्स कंपोजिशन उसकी है, उसके पास सरप्राइज का एलिमेंट है, उसके पास टारगेटिंग स्ट्रैटेजी पाकिस्तान के अंदर कौन सा टारगेट लेना है उसकी चॉइस है, और सबसे बड़ी बात का टाइम उसकी मर्जी का है कि सुबह भेजने हैं, रात को भेजने हैं, कौन सी तारीख को भेजने हैं। जब इतने एडवांटेज हो आपके पास इनिशिएट करते हुए, तो फिर लोग आपसे पूछते हैं कि फिर वो वॉर ट्रॉफी कहाँ है, आप जीत कर आए हैं तो क्यों गए थे इतना कुछ लेकर, तो फिर जीत कर क्या आए। आज भी उनकी अपोजिशन भी पूछ रही है, दुनिया भी पूछ रही है कि सबूत देते हैं कोई जीतने के, अगर आप जीते हैं। तो जब आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप ऑफेंस नहीं लॉन्च करते, फिर आप समझते हैं कि अच्छा है थोड़े से और फंड कर दो ऐसे टेररिज्म एलिमेंट्स को जो पाकिस्तान को स्ट्रेच आउट करें, वेस्टर्न बॉर्डर से खास तौर पर डाइल्यूट करें, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को, मिलिट्री हमारी जो डिप्लॉयमेंट है उनको करें। तो आई थिंक ये उस वक्त भी मैंने कहा था, और ये बिल्कुल फील्ड मार्शल बिल्कुल ठीक कहा है कि ये अब हिंदुस्तान के पास चॉइस ही नहीं रहा, क्योंकि एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट भी है, फिर अकाउंटेबिलिटी भी देनी पड़ती है आपको। बिल्कुल अग्री। थैंक यू सो मच खालिद चिश्ती साहब, और आपने बिल्कुल सही फरमाया, इनकी वॉर ट्रॉफी तो कहाँ होती, हमने देखा है सेलिब्रेशन भी नहीं कर रहे थे इन 4-5 दिनों में जितना पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सेलिब्रेशन हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है हम फतह याब हुए अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी तरफ खामोशी थी, सन्नाटा था, वीरानी थी, और वॉर ट्रॉफी तो उनके पास कोई है नहीं। चलें जनाब आगे बढ़ते हैं, और वीकेंड पर एक और डेवलपमेंट हुई है उसका भी जिक्र कर लेते हैं, और वो ये ईरान अमेरिका जो मामलात हैं वो किस तरह आगे बढ़े ज़रा वो बता देते हैं। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि फील्ड मार्शल ने बताया है कि अमरीकी तजवीज़ पर ईरान का जवाब मौसूल हो गया। अमरीका ने किस तरीके से अब जी डायलॉग को या किन उमूर पर बात की जाए मुज़ाकरात में वो तजवीज़ दी थी, जिसका जवाब मौसूल हो गया है। ईरान के जवाब से मुतालिक अभी वो ये कह रहे थे कि मज़ीद तफसील नहीं बता सकते, लेकिन अमरीका ईरान जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी हैं, और फील्ड मार्शल की काविशें लायक तहसीन है। वज़ीर आज़म ने ये कहा, ईरान का जो सरकारी मीडिया है वो ये कहता है कि तेहरान ने अमरीकी तजवीज़ का जवाब पाकिस्तान को भिजवा दिया है, और जंग के खात्मे के लिए ईरान का जवाब पाकिस्तान को इरसाल हो गया। ईरान के जवाब में जंग के खात्मे, अच्छा तजवीज़ क्या आई थी कि ईरान ये कह रहा है जी कि जंग के खात्मे के लिए खलीज और आबनाए हुर्मुज़ में बहरी सलामती पर तवज्जो मरकूज़ रखी जाए, मगर जो इसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानियन रिस्पॉन्स को अनएक्सेप्टेबल, ये जो प्रपोजल दिया है इसे टोटली अनएक्सेप्टेबल कह दिया है। और जाहिर है इसमें ईरान ने कहा था कि जंगबंदियाँ आबनाए हुर्मुज़ मरहला वार खोलने की तजवीज़ थी, अमरीकी पाबंदियाँ बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा था, जिसे मुस्तरद कर दिया डोनाल्ड ट्रंप का वही वॉर रेट्रिक। और उन्होंने एक ट्रूथ सोशल पर एक थैंकफुली 2 लाइंस की एक ट्वीट की
جس میں سے ایک لائن میں انہوں نے کہا کہ میں دس از ناٹ ایکسیپٹیبل، جو کہ ایرانین سو کالڈ ریپرزینٹیٹیو انہوں نے لکھا، یہ کوٹ ان کوٹ نے جو یہ جو مسودہ پیش کیا ہے، جو تجاویز پیش کی ہیں، دس از کیپٹل لیٹرز ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل. یہ اپنی آپ اسکرین سے ملاحظہ کر سکتے ہیں. اچھا جناب، اور دوسرا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایران میں ملبے تلے، اچھا ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ایران میں ملبے تلے دبے افزودہ یورینیم کی نگرانی کریں گے. امریکی صدر نے اعلان یہ کیا ہے کہ اگر کوئی ایرانی افزودہ یورینیم کے پاس جائے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا، افزودہ یورینیم کے پاس جانے والے کو اڑا دیں گے. اور امریکی صدر یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ ایران کے خلاف جنگی کارروائیاں ختم ہو گئی ہیں، ایرانی افواج ختم کر دیں گے، ایرانی سطحیں ختم کر دی گئیں، ایران کو بحالی میں 20 سال لگیں گے. یہ تو خیر وہ اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ مطلب ضرورت پڑی تو مزید 2 ہفتے ایران پر حملے کر سکتے ہیں. کہتے ہیں ابھی کچھ اہداف باقی ہیں اور ہو سکتا ہے ہمیں دوبارہ حملے کرنے پڑے، تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. دوسری طرف ایران کے صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ ظالم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، امریکہ سے مذاکرات کا مقصد قومی حقوق کی جنگ لڑنا ہے. ایرانی صدر کہتے ہیں کہ دشمن کے سامنے جھکنا ہماری تاریخ نہیں ہے، سفارتی کوششوں کا واحد مقصد ایرانی مفادات کا دفاع ہے. جنگ بندی کے باوجود ایرانی بندرگاہوں کی غیر قانونی ناکہ بندی وعدہ خلافی ہے. ایرانی قوم کے تعاون سے تمام مشکلات پر قابو پا لیں گے. تو یہ تمام تر صورتحال. روس کی بھی اگر آپ کو بات بتا دیں کہ روس نے پھر ایک دفعہ ایران کی افزودہ یورینیم محفوظ رکھنے کی پیشکش کر دی ہے. اور جب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایران کا وہ جو 450 کلو افزودہ یورینیم ہے، انرچڈ یورینیم ہے، وہ کون ملک ہے، تو وہ پہلے بھی روس کے پاس ایک دفعہ پہلے بھی یہ ہو چکا ہے، یا دوسری دفعہ پھر دوبارہ سے روس نے پیشکش کی ہے. روسی صدر پیوٹن یہ کہتے ہیں کہ ایران تنازع جلد ختم نہ ہوا تو فریقین کو نقصان اٹھانا پڑے گا. میری رائے میں کوئی بھی فریق اس تنازع کو جاری رکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتا. امید ہے ایران تنازع جلد ختم ہو جائے گا. تو یہ جناب وہ ماسکو میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ روس نے 2015 میں بھی ایران سے افزودہ یورینیم کو منتقل کیا تھا. اس تجربے کو دہرانے کے لیے تیار ہیں ایک دفعہ پھر سے. بالکل، جو ہے اوباما ایڈمنسٹریشن میں جب ایک معاہدہ طے پایا تھا اس کے تحت یہ تمام تر بندوبست کیے گئے تھے. تو چلیں اس پر بات کر لیتے ہیں مزید کہ اب جو حالات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں، مذاکرات کے کتنے چانسز ہیں، یہ اب معاملہ کس طرف جا رہا ہے. بات کر لیتے ہیں دفاعی تجزیہکار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ مسعود صاحب، بہت شکریہ. خبر پہلے یہ آئی کہ تہران نے پاکستان کو جواب بھجوا دیا ہے. وزیر اعظم پاکستان نے بتایا کہ فیلڈ مارشل نے بتایا ہے کہ امریکی تجاویز پر ایران کا جواب موصول ہو گیا. اب لیٹسٹ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ٹویٹ کر کے کہہ دیا ہے کہ ہم یہ تجاویز نہیں مانتے، ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے ایران کی تجاویز. ذرا مجھے بتا دیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مذائقہ تھا، کیا ایسا تھا جو امریکہ اسے نہیں مان رہا؟ کیا تھا کہ جنگ بندی اور آبنائے ہرمز مرحلہ وار کھولنے پر بات کی جائے، پھر یہ تھا کہ امریکی پابندیاں اور بحری ناکہ بندی ختم کی جائے. تو اس پر تو بات ہو سکتی ہے، یہی وہ پوائنٹس ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں ان ایکسیپٹیبل ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ تجاویز؟ جو شروع میں ایران نے پوائنٹس دیے تھے، 14 پوائنٹس تھے، وہ بھی بڑے فلیکسیبل اس میں چیزیں تھیں. اور ابھی بھی جو ہے، اور ایران جس طرح چاہتا ہے کہ فیزز میں ہم کرتے ہیں تو چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ایسی بات ہے. لیکن میرے خیال میں میرا ماننا یہ ہے کہ اٹ از سارٹ آف اے پریشر ٹیکٹکس ہے. پوسچرنگ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا ایج پہ دکھانا چاہتا ہے، کیونکہ آلریڈی دیکھیں اتنا پریشر ٹرمپ ہے. کیونکہ ایرانی سمجھتے ہیں کہ دے ہیو پریویل، اسپیشلی جو حملہ ہوا سسٹین کر گئے ہیں، وہ اپنے آپ کو انٹیکٹ انہوں نے رکھا ہے. اور یہ ابھی ریٹریٹ کر گیا آلموسٹ. اسرائیل بھی پیچھے ہٹ گیا، امریکہ بھی پیچھے ہٹ گیا. تو سو آف فریم جو کرنا چاہ رہے تھے اور نیول بلاکیڈ لگانے کے بعد پھر یہ ان کو امپریشن ہے کہ اب ہمارے پاس ایک ایچ ہے. یقیناً اس سے یقیناً دیکھیں کہ ایران کے لیے مشکلات بلڈ ہو رہی ہیں، اسپیشلی امریکن بلاکیڈ کے لیے، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم انٹرنیشنل کمیونٹی دنیا بھر کے لیے بھی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. سو میرے خیال میں اس سارٹ آف اے پریشر ہے. اور یقیناً دیکھیں کہ اٹس ناٹ آل اوور. یقیناً اس میں بات چیت ابھی جو اس کا اسٹاف بیٹھیں گے، انیشلی ان کو چیزیں کنوے کی ہوں گی، لیکن اسٹاف بیٹھیں گے، پاکستان اس میں درمیان میں ہے، تو اسٹل اس میں بات چیت ہوگی، بارگیننگ ہوگی کہ ہم اس طریقے سے اس کو ایسا کر سکتے ہیں. سو اٹس آل از ناٹ اوور. تو میرا خیال اسٹل ہوپ ہمیں امید رکھنی چاہیے. اور کیونکہ ابھی ان کا بھی یہی کوشش ہوگی کہ یہ چیزیں سیٹل ہو. چائنا بھی جا رہے ہیں، پھر اب ایران نے بھی ایک جو میجر کہا ہے کہ ایک گارنٹی چاہا ہے کہ بڑی طاقتیں دیں، چائنا دے، رشیا دے، اور پھر جس طرح یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا وہ کور بھی مانتے ہیں. تو وہ بھی ایک بڑی جائز بات ہوتی ہے، کیونکہ وہ آلریڈی دیر از اے ہیوج ٹرسٹ ڈیفیسٹ جس طرح ایران پہ حملے ہوئے تھے. سو دیئر فور ان کی ریکوائرمنٹ بڑی جائز بنتی ہے
कि भाई इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसमें कुछ कहे कि अगर फ्यूचर में कोई हमला दोबारा होता है तो फिर क्या होगा। सो मेरा ख्याल में अभी भी बातचीत आगे बढ़ेगी। वैसे भी आप देखें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक दफा बात की थी कि वी आर बेटर ऑफ नॉट मेकिंग ए डील एट ऑल। तो वो भी एक कंसेप्ट उनके जहन में चीज चलती है। प्रेशर कहते हैं आप रखें इस पे ताकि ये मजबूर हो जाएं और आगे फाइनली वो डील को साइन करें। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि अभी पुतिन ने जिस तरह से ऑफ़र की दोबारा से कि रशिया जो है वो ईरान का अफसोदा यूरेनियम अपने पास रख सकते हैं, वो जो 450 किलो अफसोदा यूरेनियम है जिस तरह से 2015 में रशिया ने रखा था। बट CNN ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो प्रपोजल एक्सचेंज हुआ है, जो डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं कि इट्स टोटली अनएक्सेप्टेबल, उसमें जो की इशू था जो कि कंट्री का न्यूक्लियर प्रोग्राम था, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था, वो मेंशन नहीं था। आपको लगता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम इज़ द ओनली स्टिकिंग पॉइंट यहाँ पर? क्योंकि अगर ऐसा है तो न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर तो ईरान मुतअद्दिद दफ़ा उसको सॉल्व करने की तरफ आ चुका है। वो JCPO में भी की बात हो चुकी है। वो उसके बाद जो बाद में जो जितनी भी टॉक्स हुई हैं उनमें भी ईरान तो क्वाइट कंफर्टेबली इस बात के ऊपर माना हुआ था कि हम कोई हल निकाल लेते हैं बैठ के न्यूक्लियर प्रोग्राम का। जी हाँ, देखिए मेरा ख्याल में अब ट्रम्प के लिए बड़े मुश्किलात हैं। अगर वो जिस तरह जॉइंट कंप्रेसिव प्लान ऑफ एक्शन हुआ 2015 में, तो अब लोग पूछेंगे अगर आपने अगर एग्रीमेंट ईरान से करते हैं तो क्या अचीव किया है, व्हाट वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट 2015। तो अब दैट्स वाई आप देखें कि अमेरिका या ट्रम्प का फोकस है इस न्यूक्लियर प्रोग्राम, जीरो एनरिचमेंट की बात करते हैं, वी विल नॉट अलाउ देम टू डेवलप ए न्यूक्लियर बम की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी उन्होंने जो चीजें बताई हैं कि 20 साल का आपको बैन होगा, फिर उन्होंने ये कहा कि यू विल डिसमेंटल नितान्स को, इस्फहान को, फर्दो को करेंगे, देयर विल बी नो अंडरग्राउंड कोई एक्टिविटी नहीं होगी और इंस्पेक्शंस होंगी इंटरनेशनल अनअनाउंस्ड होंगी और आप उनके साथ वो कॉर्पोरेट करेंगे, वो जो मतलब ऑन डिमांड इंस्पेक्शन होंगी। तो बड़ी मुश्किल किस्म की चीज़ें हैं। और अभी आप जब कहते हैं जीरो एनरिचमेंट हो, तो जब वो कहते हैं भाई NPT हमने साइन किया है और वो हमें अथराइज करता है 3.67% हमने कर सकते हैं, तो हमें तो करना चाहिए फॉर पीसफुल पर्पसेस, तो वो भी मानने को तैयार नहीं है। और फिर देखें कि रशिया को हैंड ओवर करना 440 केजीज ऑफ इनरिच्ड यूरेनियम है, उसके अलावा डिफरेंट कैटेगरीज में ऑलमोस्ट 11 टन के करीब है, जिसमें बताते हैं 2% से लेके 40-60% तक का है। तो रशिया को भी वो इसलिए नहीं देना चाहते, रशिया का फायदा होगा ये इन्वेस्टमेंट वहाँ पे लेके जाते हैं। तो देयर इज एन ऑप्शन, इसको डाइल्यूट करें इसको, फिर वो ऑप्शंस तो बहुत सारे कुछ हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इट इज सॉर्ट ऑफ ए पोस्चरिंग है, प्रेशर है और अल्टीमेटली कुछ ना कुछ होगा। लेकिन देखिए वो चाइना भी जा रहे हैं और चाइना में आदो उनकी कोशिश होगी उससे पहले 1 पेजर एक MOU हो जाए और फिर इसके बाद हो सकता है चाइना को से बातचीत हो जाए। लेकिन चाइना को जाके ये रिक्वेस्ट नहीं करेंगे प्लीज हेल्प अस, सही, बल्कि वो कहेंगे अपना इन्फ्लुएंस आप डालें और उसको सेटल करें। लवली, थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब, आपने Thank you. अपनी बड़ी इंसाइटफुल चीज़ से हमें अपडेट किया। और यहाँ पर आपको लिए चलते हैं शेखुपुरा, जहाँ पर मोटरवे पुलिस की पासिंग आउट परेड की तकरीब इस वक्त जारी है और शेखुपुरा के ये मनाजिर हैं जहाँ पर आला कारकर्दगी दिखाने वाले कैंडिडेट्स को शील्ड से नवाजा जाएगा। और जीप पर मौजूद अफसरान कौमी परचम को सलामी देते हुए शेखुपुरा से आप मनाजिर देख रहे हैं। मोटरवे पुलिस की पासिंग आउट परेड की तकरीब इस वक्त जारी है। आज नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के लिए एक यादगार दिन है कि जब 3 की मेरी धड़कन चमकेगी मेरी चौखट, वो शीशा पेलाई दीवार हूँ सदा को हलफ के लिए अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर जानकर अहद करता हूं कि मैं अपने फराइज मनसबी मुल्की कवानीन के मुताबिक सही और बजा तौर पर ईमानदारी से अदा करता रहूंगा। तौफीक और हिम्मत अता फरमाए।
चलें जी, इसी के साथ लेते हैं शॉर्ट ब्रेक। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और इससे पहले हम बात कर रहे थे ये जो मुज़ाकरात का मामला है, अब ये कहाँ जा रहा है, हमारे गेस्ट इस हवाले से तबसरा भी कर रहे थे। तो इसराइल ने ईरान पर हमलों के लिए इराक़ में खुफिया फ़ौजी अड्डा बनाया है। अब अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये खबर ब्रेक की है और कहा है कि अमरीकी हुकाम के हवाले से ये दावा उन्होंने किया है कि खुफिया फ़ौजी अड्डा सहराई इलाके में कायम किया गया, जिस पर इसराइली स्पेशल फोर्सेस तैनात थीं और ये अड्डा इसराइली फ़ज़ाइया के लॉजिस्टिक मरकज़ के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा था। रिपोर्ट ये भी कहती है कि मार्च के आगाज़ में इस फ़ौजी अड्डे के करीब पहुंच गई थी फ़ौज, इराक़ी फ़ौज इस फ़ौजी अड्डे के करीब पहुंच गई थी, लेकिन इसराइली फोर्सेस ने मुबैना तौर पर फ़ज़ाई हमले करके इराक़ी एहलकारों को अड्डे से दूर रखा ताकि राज फाश ना हो। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इराक़ में कह रही हूँ, बल्कि इसराइल ने अपना जो एक इंटेलिजेंस सिस्टम है खुफिया तौर पर कितने ममालिक तक फैलाया हुआ है, और मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से डिस्ट्रप्शन की हुई है उससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि क्या इरादे हैं। वो जो ग्रेटर इसराइल की बात होती है ना, ये उसी के एक फैक्टर्स हैं। इतने से इसराइल ने पूरी दुनिया के नाक में दम किया हुआ है, और अगर कोई इस इसराइल से नहीं डरा तो वो है मर्द मोमिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, जिन्होंने डट के मुकाबला किया और जिन्होंने इसराइल का जो प्रोपेगेंडा था कि मिडिल ईस्ट में सारी इस्लामी ममालिक एक दूसरे से लड़ पड़े, उसको डिबंक किया। मूविंग फॉरवर्ड, अब आपको ज़रा एक बड़ी एक अजीबो गरीब सी एक बात है, ये बताते हैं आपको। अजीबो गरीब नहीं है, ये जिस मुल्क की हम बात कर रहे हैं ना, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये उनके लिए सुर्ख लकीर है और वो उनको सूट करती है। हम इसको नहीं कोई एम्फेसाइज कर रहे। वो क्या, नॉर्थ कोरिया के जो आपको पता है किम जोंग उन साहब हैं, वो कहते हैं कि उधर से नॉर्थ कोरिया का क्या पैगाम आया कि मुल्क के सरबराह को कत्ल किया गया तो फौरी एटमी हमला कर दिया जाएगा। शुमाली कोरिया ने दुनिया को बड़े खतरे से आगाह कर दिया है। अखबार टेलीग्राफ ने ये रिपोर्ट किया है कि नई आईनी तरमीम के मुताबिक अगर किम जोंग उन को कत्ल किया गया, न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को खतरा लाहक हुआ तो एटमी निज़ाम खुदकार और फौरी तौर पर हरकत में आ जाएगा। और अखबार ने ऑटोमेटिकली खुदकार निज़ाम है, मतलब उसको ऑपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे अगर किम जोंग उन को कुछ हुआ तो वो खुदकार, वो ऑटो ही सब कुछ चल जाएगा। अखबार ने लिखा ये कि फैसला ईरानी क़यादत और अमेरिका और इसराइल ये हमलों को निशाना बनाने के तनाजुर में किया गया। जिस तरह से अमेरिका और इसराइल ने जारहियत की और ईरान की जो टॉप टियर लीडरशिप थी उसको एलिमिनेट किया, तो उस तनाजुर में अब नॉर्थ कोरिया की जानिब से अब आप देखिए नॉर्थ कोरिया कितनी तैयारी के साथ, लेकिन मुझे याद है बड़ी मीम्स बीच में आई थी जब अमेरिका और ईरान इसराइल का मामला चल रहा था, जंग वाली कैफियत जब थी, कि वो बड़े उदास से फिर रहे हैं, उनकी उदासी कहीं वो उदास खड़े हैं। अब वो तैयार है कि भाई कोई ज़रा हमसे तो मुकाबला करने आए, फिर हम अपनी कैपेबिलिटीज़ बताते हैं। लेकिन बात फिर वही है कि न्यूक्लियर हमला ये कोई भी किसी भी मुल्क की जानिब से अगर इस तरह की बात है तो बड़ी अलार्मिंग और तशवीशनाक बात है और इसको कोई सपोर्ट नहीं करता, इसको कंडेम करने की बिल्कुल भी जरूरत। अच्छा जी, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बात एक दफ़ा फिर से कर लेते हैं। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान आज अपनी मौसर जिम्मेदाराना और गैर जानबदार सिफारतकारी के जरिए तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है, जहाँ पर पूरी दुनिया में जंगों की बात हो रही है, हेट्रेड की बात हो रही है, कत्लो गारत की बात हो रही है, वहाँ पर पाकिस्तान फील्ड मार्शल की क़यादत में क्या कर रहा है? पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है, सिफारतकारी की बात कर रहा है, सालिसी की बात कर रहा है। और वो कहते हैं कि दुनिया में आज हमारे दोस्तों की तादाद माजी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो गई है। फील्ड मार्शल ने यह भी कहा कि अमेरिका और ईरान को पाकिस्तान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है, और ये तो हम डे वन से इस बात को रिपोर्ट भी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सालिसी को बार बार सराहा। चलें जी, तो और साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी हम देख रहे हैं कि राब्ते जारी हैं, टेलीफोनिक राब्ता हुआ उनका कतर के वज़ीर आज़म से और इलाकाई सूरत हाल अमन कोशिशों पर बेसिकली बातचीत हुई। और इसी तनाजुर में हम देख रहे हैं कि पायदार शराकतदारी को मजबूत और वसअत देने के लिए बड़ी कोशिशों पर जोर दिया गया। बात कर लेते हैं, हमारे साथ साबिक सफ़ीर डॉक्टर जिम अहमद साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ज़रा मैं इस बात से आगाज़ करती हूँ कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि दुनिया में आज हमारे दोस्तों की तादाद माजी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, और आलमी सियासत में पाकिस्तान खुद मुख्तार और गैर जानिबदार रियासत पेश करने में हम देख रहे हैं बड़ी हद तक कामयाब हुआ है और हम अमन पसंद एक कंट्री के तौर पे सामने आए। आज ये देखें कि ईरान अमेरिका अपने मुज़ाकरात के लिए, सालिसी के लिए पाकिस्तान की तरफ देखते हैं और ट्रस्ट करते हैं। ये कितना इम्पॉर्टेंट है ये ट्रस्ट, और आज जो ये हमारी इतने दोस्तों की तादाद बड़ी, बेसिक बुनियादी फैक्टर्स इसके क्या हैं?
देखिए फैक्टर्स आर फॉलोइंग बेसिकली, लेकिन सबसे पहले सुबह बखैर आपको और आपके नाजरीन को, और मदऊ करने पर मैं मशकूर। फैक्टर्स इसके ये हैं, मंदरजा झैल फैक्टर्स हैं। नंबर 1 ये कि हमने जो अपना क़ुव्वत बाजू दिखलाया मार्का हक में और बनियानुल मसूद में, तो उसमें हमें हमारी एक अफजलियत, अहमियत, कद काठ और हमारी इज्जत व वक़ार व तकरीम में इजाफा हुआ। और जब किसी कौम और किसी मुल्क का इज्जत व वक़ार व तकरीम में इजाफा होता है तो दुनिया उसके साथ रिश्ते नाते रखना चाहती है, दुनिया दोस्तियां रखना चाहती है। और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने भी यही जिक्र किया कि अब हमारे दोस्त ज़्यादा हैं, और वो इसीलिए ज़्यादा हैं कि दरअसल दुनिया में आजकल जहां ताकत का सरचश्मा होता है वो महवर बन जाता है। तो पाकिस्तान ने अपने अस्करी ताकत का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान की तरफ हुई कि एक मुल्क जो कि 5 गुना छोटा, एक मुल्क जिसका कि बजट कोई 8 गुना कम अपने दुश्मन से, इंडिया से, और वो और बहुत सारी और उसके साजो सामान इंडिया का ज़्यादा, तो ऐसे में एक मुल्क जो है उसने उसको चारों शाने चित कर लिया। तो उनकी तवज्जो बढ़ी। जब उनकी तवज्जो बढ़ी तो फिर उन्होंने देखा कि हमारी प्रोफेशनलिज्म और उसके अलावा हमारी तरबियत, हमारी सिपाह, उनकी मोटिवेशन, उनका सिपाह सालार वो किस नोयत का है। जब ये तमाम चीज़ों पर गौर किया दुनिया ने, तो दुनिया ने हमारी तरफ राग़िब होके हमसे राहो रस्म बढ़ाने शुरू किए, और यही इशारा है हमारे फील्ड मार्शल का जो उन्होंने कल दिया सुबह को। अब रहा सवाल कि एक साल में, जी आप कुछ पूछ रहे हैं? प्लीज कंटिन्यू जमील साहब। जी, एक साल में हमने ये सफर कितना तय किया, कैसे तय किया? सिर्फ अस्करी कुव्वत तो अपनी जगह पर, लेकिन वो बुनियाद बनी। उसके बाद फिर ये हुआ कि हमने डिप्लोमेसी के जरिए, बोथ ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी एज वेल एज मिलिट्री डिप्लोमेसी, वाज़ेह रहे कि चंद ममालिक दुनिया के हैं वहाँ मिलिट्री डिप्लोमेसी ज़्यादा कारगर और ज़्यादा कामयाब होती है। मिसाल के तौर पर हमारे जो खलीजी ममालिक हैं, मिसाल तौर पर ईरान हो गया, और इसीलिए आप देखें जो मीडिएशन में भी हमें सहूलत है तो वो सबसे ज़्यादा वो इसी वजह से है कि हमारी अस्करी क़यादत की उन राह रस्म, उनकी जो IRGC और बाकी उनके जो सरबराहान हैं, जो ज़्यादातर IRGC के जनरल रह चुके हैं, उनसे बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरीके से चाइना, इसी तरीके से रशिया, इसी तरीके से ज़्यादातर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और अफ्रीकन कंट्रीज़ वो मिलिट्री डिप्लोमेसी को ज़्यादा फौकियत देते हैं, और उसके अलावा वेस्ट में ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी को ज़्यादा फौकियत देते हैं। लेकिन अगर ये पैरेलल चलती हैं तो इसका जब संगम मिलता है तो रिजल्ट ये मिलता है जो आपने पिछले 1 बरस में देखा कि जो हमारी ट्रेजेक्ट्री बढ़ी है, हमारी आन बान शान जो बढ़ी है, वो इसी वजह से बढ़ी है। और दुनिया मुअतरिफ है जमील साहब, इसकी आलमी जरीदे, मीडिया आउटलेट्स इस बारे में लिख रहे हैं। लेकिन जमील साहब, हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो पिछले 1 साल के अंदर जो भी डोनाल्ड ट्रंप ने तमाशे लगाए, चाहे उसमें फिर वेनेजुएला अटैक हो, उसमें फिर उनका वो वाला मौक़िफ़ हो जो ग्रीनलैंड के बारे में रखते हैं, चाहे फिर इसराइल के साथ मिल के ईरान पर जंग मुसल्लत करना हो, उनकी टॉप टियर क़यादत को एलिमिनेट करना हो, अब हम ये देख रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया से ये एक बड़ा क्लियर स्टेटमेंट आया है कि अगर किम जोंग उन को कुछ हुआ तो उनका जो खुदकार कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम है न्यूक्लियर का, वो खुदकार हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली, मतलब वो उन्होंने डायरेक्ट तड़ी लगा दी है एक न्यूक्लियर अटैक की, जो कि किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। और ये कोई अच्छी बात नहीं है कि कोई एक मुल्क जो है वो खुलेआम न्यूक्लियर तड़ियाँ लगा रहा है। बट जमील साहब, ये आप बताइएगा कि अब एज ए ग्लोबली हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने जो शरारतें शुरू की हैं, आज हम न्यूक्लियर अटैक्स की बातें कर रहे हैं। जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सिविलाइजेशन को ख़त्म करने की धमकी भी दी थी, तो उस वक्त दुनिया सहम गई थी। लेकिन चले अमेरिका में तो फिर भी कोई ना कोई सिस्टम अब भी, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादातर वाइट हाउस में ही फैसले कर रहे हैं, अपने किचन कैबिनेट से बस थोड़ा बहुत जो मशवरा कर लिया सो कर लिया, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी ज़्यादा एक गुंजाइश है कि प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा अख्तियारात हैं, तो जिसकी वजह से उसको इस्तेमाल करते हुए, हालांकि वो जमहूरियत के दाई
अमेरिका हमेशा अपने आप को गर्दानता रहा है, लेकिन वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल लूप होल्स की वजह से अब जो फैसले देख रहे हैं आप और जिस किस्म की खतरनाक किस्म की गुफ्तगू देख रहे हैं वो उसी का शाखसाना है। अब आ जाते हैं कि नॉर्थ कोरिया का जहर है, अगर देखा जाए किसी के हर लिहाज से देखा जाए उसका कोई मुकाबला नहीं है माँ सिवाय एक, और वो है जौहरी कुव्वत। तो नॉर्थ कोरिया जौहरी कुव्वत है। कभी कभी नॉर्थ कोरिया को आंखें दिखलाने की कोशिश की जाती है जिस तरह ईरान को दिखलाई जाती रही, तो नॉर्थ कोरिया ने पहले से वादे कर दिया है। उनके जहन में यकीनन ये होगा कि ईरान के साथ क्या हुआ, उनके रहबर के साथ क्या हुआ, और उनके पास कोई इंटेलिजेंस की कहीं शाबा होगा या कोई उसकी एनालिसिस होगी जिसकी बुनियाद पर ये पहले से दे दिया, और नॉर्थ कोरिया ये करके भी दिखला सकता है। ये पता है अमेरिका को और वेस्टर्न कंट्रीज को। तो लिहाजा अगर किसी ने कभी ये सोचा भी होगा तो इस धमकी के बाद मैं समझता हूँ कि ऐसा करने से बिल्कुल इज्तनाब किया जाएगा, ऐसा करना नामुमकिन हो जाएगा उनके लिए, इसलिए ये बयान दिया गया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर जमील अहमद साहब, बहुत शुक्रिया। भाई नॉर्थ कोरिया वालों का थोड़ा सा इशू ये है कि वो बड़े कहते हैं ना जंगजू किस्म के मिजाज भी रखते हैं उनकी हुकूमत, और वो तैयारी भी पूरी रखते हैं, मगर कोई उनकी तरफ ऐसे देखता भी नहीं, ये आंख नहीं उठाता। भाई जो अपने खिलौने हैं ना वो इस्तेमाल करने के लिए बेताबी से रेडी बैठे हुए हैं, व्हिच इज नॉट अप्रोप्रिएट। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद से। वेलकम बैक जनाब। और अब ज़रा हम थोड़ी टेंशन की खबरों से निकल के अब आपको बताते ये हैं कि सिंध में अब हो क्या रहा है कि बच्चों के जो 9-10th वाले बच्चे थे उनके एग्जाम्स हो गए हैं ख़त्म, और जो कॉलेज वाले हैं उनके भी 23-24 को गालिबन ख़त्म हो जाएंगे, छुट्टियां ईद आ रही है करीब, ईद आ रही है। अब जनाब आपको नज़र आएगा गली गली सड़कों पे, चौराहों पे, शाहराहों पे रश, जानवर नजर आएंगे आपको, और अभी छुट्टियां सेलिब्रेट भी ऐसी होंगी कि सियाहती मकामात का विजिट किया जाएगा। बीइंग कराची आइड मैं ये देखती हूँ कि इस टाइम से ही बड़ा हमें ना मवेशी जानवर ये गली मोहल्लों में नजर आने शुरू हो जाते हैं, और बड़ा कंपटीशन भी शुरू हो जाता है। इस दफ़ा हमें वो चीज़ अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। इसकी आई थिंक रीज़न महंगाई भी है। महंगाई एक ऐसा फैक्टर है कि लोग ये सोच रहे हैं आखिरी वक्त में जाके ज़रा जानवर ख़रीदें तो शायद दाम थोड़े गिर जाए। भाई मैं उस दिन किसी से बात कर रहा था, तो खैर मैं इस हवाले से हम डिटेल्ड गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन आपको ज़रा ये बता दें कि जब छुट्टियां हो गई हैं तो अब छुट्टियों में लोग रुख करेंगे सियाहती मकामात का। अब हुकूमत पाकिस्तान का सियाहत के फ़रोग के लिए बेहतरीन इकदाम ये हुआ है कि पाकिस्तान को आलमी सियाहती मरकज़ बनाने के लिए ग्रीन टूरिज़म पाकिस्तान मुतहरिक हो चुका है। ग्रीन टूरिज़म पाकिस्तान मुल्की सियाहत को आलमी मयार से हम आहंग करने में मसरूफ़ अमल हैं, और जनाब पाकिस्तान कुदरती हुस्न और सकाफती विरसे को आलमी सतह पर उजागर करने की कोशिश तेज़ करते हुए सियाहती इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही है। तो नज़ीर शाह ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए वो देख लेते हैं। आपको हाइकिंग करते हुए पहाड़ी सिलसिलों का लुत्फ लेना हो, साहिल समुंदर का खूबसूरत नज़ारा करना हो, या फिर आपको अपने खूबसूरत शैले में बैठकर फैमिली के साथ खाना खाना हो, या खूबसूरत मनाजिर हैं उनको देखना हो, तो उसके लिए आपको गडानी के इस मकाम पर आना पड़ेगा। ग्रीन पाकिस्तान के तहत इस पूरे मकाम को जिस अंदाज में बनाया गया है वो काबिल तहसीन है। ग्रीन टूरिज्म पाकिस्तान एक उभरती हुई हुकूमती सरपरस्ती में काम करने वाली टूरिज्म डेवलपमेंट कंपनी है। गडानी देखा लगून हमारा वर्ल्ड क्लास लेवल का लगून है, हमारे पास टॉप नॉच सिक्योरिटी फैसिलिटीज़ के साथ, खाने की फैसिलिटीज़ के साथ, फूड बेवरेज का बहुत अच्छा डिपार्टमेंट हमारा, बहुत क्वालिफाइड शेफ्स हैं और इंटरनेशनल लेवल के ट्रेन स्टाफ हैं। सहूलियात जो है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी 24 और यहाँ पे होते हैं, और जो फूड वगैरह रूम में शामिल होते हैं, इंक्लूड होते हैं रूम रेंट के अंदर। जिनको नेचर पसंद है तो वो तो बिल्कुल सर उनके लिए बहुत अच्छी जगह। ये इदारा आलमी सतह पर पाकिस्तान को एक सयाहती मकाम के तौर पर मुतारिफ करवा रहा है। टूरिज्म पाकिस्तान सयाहती तजर्बे को एक नई पहचान दे रहा है। आलमी तौर पर मुल्क को एक नुमाया मकाम के तौर पर पेश किया जा रहा है, जो लायक तहसीन है। कैमरामैन मोहम्मद जीशान के साथ नज़ीर शाह, ARY न्यूज़, कराची। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, स्टे देयर विद अस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। उम्मीद करते हैं आपके दिन का आगाज़ बहुत खुश आइंद हुआ होगा, और हम आ गए हैं आपके सवेरे को बाखबर बनाने के लिए। लेकिन
2-3 दिन से जाहिर है बुनियानो मरसूस को 1 साल मुकम्मल होने पे हम सेलिब्रेट कर रहे थे और वो सारा एक एपिसोड था 3 डेज़ का, बट मीनवाइल कराची में क्या चलता रहा वो भी आपको अपडेट करना बड़ा ज़रूरी है। कुछ ऐसी खबरें थी जो मंजर आम पर आई, वायरल हुई सोशल मीडिया पर। कराची की सड़कों के अलावा ये खबरें हैं जो हम आपके साथ इस वक्त शेयर कर रहे हैं। बड़े हैरान कन हमें मनाजिर देखने को मिले जब हमें भाई वो तो कहते हैं ना बड़ा एक फिल्मी सा मंजर भी लगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बाइक हमें चलाते हुए नजर आए, स्कूटी कराची की सड़कों पे, आई थिंक ये ईवी स्कूटी है, एक कराची की सड़कों पे दौड़ते हुए हमें नजर आए। और लोग जो थे जाहिर है इस वक्त देखें वैसे सड़क जो है मेरे ख्याल में सुबह के टाइम में निकले, दिन के टाइम में निकले, इतना ट्रैफिक हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो प्रोटोकॉल भी तो होता है। सड़क जो है वो बड़ी मुझे स्मूथ यहाँ की दिखाई दे रही है। अच्छा, ये मेयर सिंध असेंबली मेयर साहब जा रहे थे, फिर वो अब जाहिर है मेयर साहब अगर स्कूटी पे होंगे तो उनको कौन ही पहचानेगा, तो वो सिंध असेंबली के गेट पे फिर गार्ड्स ने भी थोड़ा ज़रा टाइम लिया प्रोसेस करने के लिए कि कौन है। फिर जब उनको पता चला कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब हैं तो वो फिर उन्होंने सलूट मार के वो उन्होंने, क्योंकि जाहिर है वो सर बड़ी गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं और पूरा कॉन्वॉय होता है। तो भाई एक्चुअली कराची में इतनी बाइक्स हैं, इतने बाइक सवार हैं और सबको जी रास्ता देखना होता है, तो कोई किसी को देख नहीं रहा होता अमूमन। तो मुर्तज़ा वहाब साहब भी अपनी धुन में ये स्कूटी चलाते हुए आप देखें जा रहे हैं और ये पहुंचे हैं जनाब वो सिंध असेंबली। अच्छा, तो जब ये मुर्तज़ा वहाब साहब बिल्कुल सिंध असेंबली के गेट पर पहुंचे थे तो वो थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई, फिर पीछे से गार्ड्स आए, उन्होंने कहा कि मुर्तज़ा वहाब साहब है, खोले, तो फिर वो उन्होंने खोला। लेकिन ये जो दो वाइट गाड़ियाँ मैंने पीछे देख रहा हूँ कॉन्वॉय के अंदर, एक लैंड क्रूज़र है गालिबन। ये मुर्तज़ा वहाब साहब एक्चुअली किफ़ायत शारी जो चल रही है मुहिम उसको इंडोर्स करने के लिए ईवी स्कूटी के ऊपर निकले थे। लेकिन इंडोर्स करना है तो फिर हेलमेट को भी इंडोर्स करते, बहुत अच्छी बात है ना। देखिए हेलमेट तो हम खुद ही अपने प्लेटफॉर्म से, मैं इस चीज़ को इस जेस्टर को अप्रिशिएट करती हूँ कि भाई आप अवामी नुमाइंदे हैं और आवाम की तरह आप सफ़र भी कर रहे हैं, बट जब हम पब्लिक अगर हेलमेट ना पहने तो फिर उन पर तो आ जाता है ई चालान। लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब तो बड़े मज़े से सारे कैमरा से गुजरते हुए चले गए, क्या इन्हें ई चालान आया होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मेयर साहब को ई चालान कौन भेजेगा? और दूसरी बात ये, फिर लाइसेंस की अगर हम बात करें तो अगर आपके पास गाड़ी का लाइसेंस है भी तो उस पर भी आप बाइक या फिर आप स्कूटी नहीं चला सकते अनलेस कि आपके पास बाइक का लाइसेंस ना हो। लेकिन अगर हम इस फुटेज को गौर से देखें तो पीछे आपको एक वाइट कलर की लैंड क्रूज़र भी नज़र आएगी जो कि कॉन्वॉय का हिस्सा थी, जो कि सर को प्रोटोकॉल दे रही थी और फिर सर पहुंचे सिंध असेंबली, लेकिन हेलमेट नहीं था और लाइसेंस नहीं था। और तीसरी बात ये है, अच्छा वैसे वो देखिए पीछे आपको नजर आ रही गाड़ी। अच्छा, लेकिन मैं ये एक और बात जानना चाह रहा हूँ कि ये जो स्कूटी है ये हम इन 4-5-6 मखसूस सड़कों के अलावा हम कहाँ पे चला सकते हैं? कराची में, लियाकताबाद में चला सकते हैं? कराची वाले इतने एक्सपर्ट हो गए हैं, हर तरह की सड़क पे, बनारस की सड़क हो जी, कहीं की भी सड़क हो, मंगो पीर की सड़क हो, वो गाड़ी, स्कूटर, साइकिल सब कुछ चला लेते हैं। अच्छा। अब उन्हें बचाना आ गया है। और हम वैसे दुआ गो है कि हमारे लीडरान जो हैं सिर्फ इस सड़क पे नहीं, ज़रा बनारस की सड़क पे भी ट्रैवल करें, ज़रा मंगोपीर की सड़क पे भी ट्रैवल करें, जौहर की सड़कों पे, ताकि आइडिया हो। देखिए आवाम में घुलेंगे मिलेंगे तो पता चलेगा कि क्या मसाइल हैं। और फिर हमें तो देखिए मुर्तज़ा वहाब साहब को चाहिए कि अब वो इसको आदत बना लें, हर हफ्ते बस ज़रा सा हेलमेट ज़रूर पहन लें। लेकिन देखिए जब मुर्तज़ा वहाब साहब बड़ी गाड़ियों में, लैंड क्रूज़र टाइप गाड़ियों में जब वो ट्रैवल करते हैं ना तो फिर वो छोटे मोटे खड्डे उनको इतना फील नहीं होते। जाहिर सी बात है, गाड़ी अच्छी गाड़ी है, अंदर एसी भी चल रहा होता है, तो वो छोटे मोटे खड्डे फील नहीं होते। लेकिन ये कि जब ऐसे घूमेंगे तो फिर एक और आपको मंजर दिखाते हैं। तो पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमें एडवेंचर करते नजर आ रहा है। ये है हमारी शर्मिला फारूकी साहिबा, पीपल्स पार्टी की रहनुमा मेंबर कौमी असेंबली, और ये कोई छोटी मोटी गाड़ी नहीं चला रही हैं, ये बस चला रही हैं, पिंक बस चला रही हैं। तो ज़रा देखते हैं, ज़रा सुनवाते हैं आपको कि किस तरीके से उनको गाइड भी किया जा रहा है। सही जाने दो अब हल्का सीधा करो, वापसी सीधा करो, स्टीयरिंग सीधा करो, सही है। काटे आराम से, वो पीछे शीशे में देखना ताकि वो कुर्सियाँ साथ नहीं आ जाए। सही जाने दो अब हल्का सीधा करो, वापसी सीधा करो, स्टीयरिंग सीधा करो। चले, अच्छी बात है। शर्मिला साहिबा ने ज़ाहिर है इसको हाईलाइट किया। पिंक बस बड़ा प्रोजेक्ट कहती है पीपल्स पार्टी, लेकिन थोड़ा एहतियात करें। मतलब
جن کا کام ہے ہیوی وہیکل سے لانا، پھر وہی چلائیں. پروفیشنلز یہ کام کرتے زیادہ بہتر ان کو سوٹ کرتا ہے. لیکن میں ایک بات ابھی سوچ رہا تھا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ مرتضی وہاب صاحب اپنی اسکوٹی پہ ذرا کریم آباد انڈر پاس کے نیچے سے ہو کے نکلتے. اوہ وہ مناظر کیا دیدنی ہوتے. یونیورسٹی روڈ بھائی بہت ساری لسٹ آ گئی مرتضی وہاب صاحب کہ آپ ان جگہوں کا سفر کریں، تو یہ پبلک ڈیمانڈ پہ لسٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. لیکن بہرحال پیپلز پارٹی کہتے ہیں نا سیلف پروموشن کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے. تو ویسے بڑے اچھے کہتے ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں نا بڑے محظوظ ہوئے ان ساری صورتحال سے، خاص طور پر مرتضی وہاب صاحب والی. آپ نے ذکر کیا یونیورسٹی روڈ کا، میں نے ذکر کیا کریم آباد انڈر پاس کا. تو پھر اب ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر ہم کراچی کی بات کریں تو 4 سال کے بعد کریم آباد انڈر پاس کھول دیا گیا، جبکہ آج کل وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بی آر ٹی ریڈ لائن کے طوفانی دورے کر رہے ہیں اور رواں ماہ انہوں نے یہاں کا 4تھا دورہ کیا. اور وزیر اعلیٰ نے بی آر ٹی ریڈ لائن اور ملحقہ سڑکوں پر تعمیراتی کام تیز کرنے کی ہدایت بھی کی اور کہا کہ 1 ماہ کے اندر فلائی اوور اور یو ٹرن کا کام مکمل ہو جانا چاہیے. اچھا وہ یہ کہتے ہیں جی سڑکوں کی تعمیر میں جو تاخیر ہو رہی ہے نا، اس سے عوام کو جو اذیت پہنچ رہی ہے اس کا مجھے احساس ہے. میرا مقصد کراچی کے لوگوں کو جلد عالمی معیار کا سفری نظام فراہم کرنا ہے. تو جلد جو ہے نا یہ بڑا جلد ہے. چلے خیر اس کی ہم ڈیٹیل جان لیتے ہیں. ویسے اب آؤٹ سورس کر دیا ہے سارے معاملے کو پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ نے. تو ذرا جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے افضل پرویز ہمارے ساتھ ہیں. افضل بتائیے گا اس پروجیکٹ کو آؤٹ سورس کرنے سے پہلے اور اب کیا فرق نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی بالکل صدف اور سائم، دیکھا جائے تو جو اذیت میں 4 سال سے مبتلا تھے کراچی کے شہری، خاص کر یونیورسٹی روڈ پر سفر کرنے والے، وزیر اعلیٰ سندھ کو 4 سال بعد خیال آیا کہ شہری بہت زیادہ اذیت میں مبتلا ہو چکے ہیں اور اس جو منصوبے کو جو ہے دوبارہ نئے طریقے سے نئی کمپنی کو دیا جائے ترقیاتی کام کے حوالے سے. کوئی یہ نئی بات نہیں، کیونکہ کراچی شہر میں ترقیاتی کام گزشتہ کئی سالوں سے جاری ہے لیکن مکمل ہونے کا نام نہیں لیتے. آپ نے بات کی تھی کریم آباد انڈر پاس کی. کریم آباد انڈر پاس 4 سال بعد مکمل تو ہوا ہے لیکن وہ ابھی بھی مکمل نہیں ہے. 90% اس کا کام مکمل ہو چکا ہے، 10% کام اس کا ابھی بھی باقی ہے. اس کا افتتاح نہ تو سندھ حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے اور جس کمپنی نے یہ کریم آباد انڈر پاس بنایا ہے کہ محکمہ کے ڈی اے کی سربراہی میں، نہ ہی انہوں نے کوئی باقاعدہ طور پر اس کا افتتاح کیا ہے. شہریوں نے خود اپنی مدد آپ کے تحت اس پر سفر کرنا شروع کر دیا ہے. تاہم دیکھا جائے تو گلستان جوہر کے جو مختلف مقامات پر ترقیاتی کام جاری ہیں، جس میں منور چورنگی پر بننے والا انڈر پاس. اچھا افضل مجھے ایک بات بتائے، میں آپ سے کریم آباد انڈر پاس کی بات کرنا چاہتا ہوں. 4 سال بعد کریم آباد انڈر پاس کو فائنلی بنا دیا گیا، ابھی اس کی افتتاح تو نہیں ہوا لیکن ٹریفک وہاں سے آ جا رہی ہے. ذرا مجھے تھوڑی لاجک میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ آرکیٹیکچرل لاجک کیا ہے اس کے پیچھے، کہ انڈر پاس میں گھسنے سے پہلے بھی ایک سپیڈ بریکر اور اس سے نکل کے بھی ایک سپیڈ بریکر، اور جیسے ہی آپ انڈر پاس سے باہر نکلتے ہیں تو آگے آپ کو مونجو دوڑو کا ایک نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے اور وہ سڑکیں آگے سے انتہائی بدحالی کا شکار ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جتنی تنگ گلیاں ہیں، مطلب وہ انڈر پاس کیا ہی کہیں گے اس کو، وہ گلی ٹائپ ایک منظر پیش کرتی ہے. اگر اس میں خدا نہ خاصا کوئی گاڑی سٹک ہو جائے یا پھنس جائے تو پیچھے تو ایک بہت لمبی قطار لگ جائے گی ٹریفک کی. جی سائم، دیکھا جائے تو جس طرح سے کریم آباد انڈر پاس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، اس ڈیزائن کے حوالے سے کافی لوگوں میں جو ہے جو تنقید پائی جا رہی ہے. لوگ اس پہ بہت تنقید کر رہے ہیں لیکن محکمہ کے ڈی اے کی جانب سے جس طرح سے ڈیزائن کیا گیا وہ ڈیزائن جو ہے بالکل شہریوں کو پسند نہیں ہے. اگر گاڑی پھنس جاتی ہے اور اس پہ رکاوٹ بنتی ہے تو یقیناً طور پر ٹریفک جام جیسے مسائل جنم لیتے ہیں، لیکن محکمہ کے ڈی اے کی جانب سے کوئی ایسی حکمت عملی سامنے نہیں آئی. سب سے اہم بات بتاؤں آپ کو سائم و صدف، جو محکمہ کے ڈی اے کے چیف انجینئر ہیں ان کو یہی نہیں پتا کہ یہ جو انڈر پاس بنا ہے اس کی کلومیٹر کتنا ہے، اس کی لاگت کتنی آئی ہے، اس کو ڈیزائن کس نے کیا ہے، ان کو یہ تک نہیں معلوم. تو اس ترقیاتی کام میں جو اہم کردار ادا کرنے والا جو چیف انجینئر ہے وہ یہ تمام چیزوں سے محروم ہے. تو یقیناً طور پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو انڈر پاس بنا یہ کس طرح بنا ہوا، لیکن آج کل کے دور میں یہ انڈر پاس بہت زیادہ اہم ہے. جو مسائل بتائے کہ ایک روڈ جو آگے آپ انڈر پاس سے نکل کے جائیں تو وہ روڈ بنا ہوا بھی نہیں ہے، اور آپ نے خود بھی بتایا کہ ابھی آفیشیلی اس کو لوگوں کے لیے اوپن کیا بھی نہیں ہے.
تو پھر لوگوں کو اجازت کیوں دی جا رہی ہے کہ یہاں سے وہ سفر کریں؟ اور ظاہر ہے جب ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تو اس کو کمپلیٹ ہونے دیں، پھر لوگوں کو الاؤ کریں. کوئی آفیشیل ڈیٹ اناؤنس ہونی ہے، کیا اسکیجول ہے کہ 10% کام مکمل ہو جائے گا تب کھولیں گے؟ پبلک نے تو یہاں سے سفر کرنا شروع کر دیا ہے، تو کوئی دیکھ بھال، کوئی مانیٹر کر رہا ہے ساری صورتحال کو؟ صرف لوگ تو پریشان ہیں کیونکہ انہوں نے سفری سہولت کے لیے کوئی نہ کوئی تو رستہ نکالنا ہے. جو میں نے آپ سے بات کی کہ 10% کام صرف موسیٰ کالونی کے اس مقام پر ہے جہاں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی جو ہے وہ لائن ہے پانی کی، اس کو منتقل کرنا ہے. اس کے حوالے سے کے ڈی اے اور دیگر اداروں کے درمیان مشاورت ہوئی تھی، لیکن پانی کی لائن منقطع نہیں کی گئی. بات کریں افتتاح کی تو یقیناً طور پر محکمہ کے ڈی کی جانب سے 14 اپریل کو اس کا افتتاح کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن 10% کام یعنی کہ پانی کی لائن منقطع نہ ہونے پر اس کو مزید ڈیلے کیا گیا. ابھی بھی اس انڈر پاس میں کام باقی ہے، جبکہ دوسری جانب انڈر پاس کا مکمل ہونا کب ہوگا، کس وقت ہوگا، محکمہ کے ڈی اے خود پریشان نظر آتی ہے. تو اگر افضل انڈر پاس کا افتتاح باقاعدہ نہیں کیا گیا سندھ حکومت کی جانب سے تو انڈر پاس کو پھر بند کر دینا چاہیے، کیونکہ انڈر پاس میں تو ایک اندھیری گلیاں ہیں نا، وہ دو وہ ان میں ابھی تک لائٹس بھی نصب نہیں کی گئیں، وہ بالکل گھپ اندھیرا ہوتا ہے آپ جیسے انڈر پاس کے اندر گھسیں. تو اگر افتتاح نہیں کیا گیا تو پھر کسی حادثے کا خدا نہ خواستہ انتظار کیا جا رہا ہے، اس کے بعد اس کو بند کریں گے تو پھر بند کر دیں، افتتاح کے بعد ایک ہی دفعہ کھولیں عوام کے لیے. جی سائم، آپ کی بات ٹھیک ہے، افتتاح کرنے کے بعد انڈر پاس کو کھولا جائے، لیکن اس انڈر پاس کی میں ایک اہم خصوصیت بتا دوں کہ جو ماضی میں بنائے گئے جو انڈر پاس تھے وہ 20 فٹ ان کی چھت تھی، وہ اندھیرے میں ڈوب جایا کرتے تھے، لیکن اس انڈر پاس کی خصوصیت یہ 35 فٹ اونچا اس کی چھت ہے، کیونکہ یہ اندھیرے میں ڈوبتا نظر نہیں آئے گا. دن کی روشنی میں بھی اجالا ہوگا اور رات کی اندھیرے میں اگر یہ روشنی نہیں ہوگی تو اس کی جو قریب کی جو لائٹیں ہیں وہ اس کو روشن کر سکیں گی. یہ وہ واحد انڈر پاس ہے جس کی چھت 35 فٹ بتائی گئی ہے، تبکہ دیگر جو شہر بھر کے انڈر پاس ہیں وہ دن میں بھی جو ہے اندھیرے میں ڈوبے نظر آتے ہیں کیونکہ اس کی چھت 20 فٹ ہے. تاہم دیکھا جائے تو محکمہ کے ڈی اے کو اس کو انڈر پاس کو مکمل طور پہ بند کرنا چاہیے. اس کے بعد جب تک اس کا کام مکمل نہیں ہو جاتا، افتتاح نہیں ہو جاتا ہے، اس کو نہیں کھولنا چاہیے. لیکن شہری اس پر سفر کرتے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. رہی بات دوسری بے آر ڈی کی، جو کہ باقاعدہ طور پر بہت بڑا منصوبہ ہے، شہری اس کو مکمل ہونے کے لیے جلد سے جلد دیکھنا چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کے طوفانی دورے اگر 4 سال قبل شروع ہوتے تو یقیناً طور پر جو 4 سال کراچی کے شہریوں نے، گلستان جوہر کے مکینوں نے، جو یونیورسٹی روڈ کے اطراف کے لوگ ہیں، یہاں کے مکین ہیں، انہوں نے اذیت میں گزارے ہیں، وہی جانتے ہیں. میں بھی یونیورسٹی روڈ پہ سفر کرتا رہا ہوں، کیونکہ سفر کرنا تمام تر ذمہ داری اگر متبادل روٹس کی جو درستگی ہے روڈ بنانے کی، یہ ٹھیکیدار کی تھی. ہمارا سانجھا ہے. بالکل افضل، آپ نے صحیح ترجمانی کی ہے کہ کیا یہاں سے جب لوگ گزرتے ہیں ان کی کیفیت ہوتی ہے. 4 سال پہلے وزیر اعلیٰ اگر طوفانی یہ دورے کر لیتے تو کام میں تیزی آ جاتی. تھینک یو سو مچ افضل، ہمیں بتا رہے تھے. بہرحال جی مجھب آپ کے پاس پوری ایک لسٹ اب لوگوں کی پہنچ جائے گی کہ ذرا آپ اس سڑک پر بھی بائک چلائیں اور ذرا کراچی کی سڑکوں کا مزہ لیں. چلیں جناب، کراچی کی جب بات ہی ہو رہی ہے تو جب آتی ہے بقرہ عید جسے کہتے ہیں بڑی عید، تو بڑی عید پر یہاں پر ہم وہ گہما گہمی دیکھتے ہیں، جگہ جگہ ہمیں جانور مویشی نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اکثر بیشتر اب لوگ یہ کرنے لگے کہ ایک ہی جگہ پر ہم دیکھتے ہیں، خاص طور پہ جو سنسان ایریاز ہوتے ہیں، پاکٹ ایریاز میں، یہاں پر تو خیر ہم دیکھتے ہیں کہ جانور بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، مگر لوگ اب یہ کرتے ہیں ایک بڑے سے پلاٹ پہ بہت سارے لوگ مل کر اپنے جانور باندھ دیتے ہیں. تو اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں سیکیورٹی کو بھی آپ نے یقینی بنانا ضروری ہے، کیونکہ کراچی میں آپ کا موبائل ہو، آپ کی بائک ہو، آپ کی گاڑی ہو، ایون کہ آپ کا جانور ہو قربانی کا، وہ تک لوگ چرا کر لے جاتے ہیں. تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. افسوس اس بات کا ہے کہ یہ اربوں کا کاروبار ہوتا ہے، سب کوئی سیکیورٹی پلان بنا ہوتا ہے. پاکٹ ایریاز میں ناردرن بائی پاس کے نیچے اتنی بڑی منڈی لگتی ہے، ہائی ویز پہ لگتی ہیں. اب ہو کیا رہا ہے کہ کراچی میں ابھی عید قربان سے قبل ہی مویشی کے جو تاجر ہیں ان کو نشانہ بنا کر 2 بڑے واقعات رپورٹ ہوئے. ایک تو واقعہ رپورٹ ہوئی ہمارے گلستان جوہر سے. اچھا کیا ہوا، جوہر سے جناب 25 بکرے جن کی مالیت تھی 19 لاکھ روپے، ایک پک اپ آئی، 25 بکرے ڈالے پک اپ میں اور لے کے فرار، غائب. سی سی ٹی وی کیمرہ میں ریکارڈ ہو گیا. اور آپ یہ سوچیں کہ 2-3 بکروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، 25 بکرے. اب 25 بکروں کو لوڈ کرنے میں گاڑی میں کتنا ٹائم لگا ہوگا اور وہ لے کے چلے گئے. مطلب
अनइमेजिनेबल बात है नहीं तो ताजरों को लूटने का सिलसिला भी जारी है। अब जैसे रहीम यार खान से भी खबर आई कि वहां से आने वाले जी मवेशी ताजरों से दिन दहाड़े 45 लाख रुपए छीन लिए गए। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार थे 6 मुल्जिमान, वारदात की और मौके से फरार हो गए। तो नज़ीर शाह से हम जानते हैं, क्योंकि कराची में हम देख रहे हैं पैटर्न बन गया है, ईद उल फितर हो तो वो कहते हैं जी ये भी एक इकॉनमी है लूट मार की, वो शुरू हो जाती है। बड़ी ईद आए तो जानवर और मवेशी जो हैं उनकी सिक्योरिटी यकीनी बनाना मुश्किल हो जाता है। तो नज़ीर से जान लेते हैं। नज़ीर बताइएगा, ये जो 2 बड़े वाक़यात हुए, ये जो ख़ास तौर पे जो 19 बकरे लेके चले गए, 19 जानवर लेके चले गए, कितना टाइम लगा इनको इस पिकअप में भरने में, और कुछ मालूम हुआ, पुलिस अब तक कुछ पता लगा सकी है? देखें सदफ, ये 19 लाख मालियत के 25 के करीब ये बकरे हैं जिनको सुजुकी में और जो बड़ी गाड़ी थी उसके अंदर सवार करके मुल्जिमान किस तरह लेकर गए। मुल्जिमान जो खुद थे वो मोटरसाइकिल और गाड़ी पर सवार होकर आए थे। बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से ये वारदात की गई। कराची बेसिकली एक शहर नहीं बल्कि एक छोटा मुल्क कहलाता है। यहाँ की जो आबादी है उस हिसाब से यहाँ पर जिस तरह नफरी तैनात होनी चाहिए वैसे नहीं होती। और कराची में जो भी जुर्म होता है वो सीजनल होता है। बकरा ईद से पहले जानवर मवेशी चोरी करने की वारदातें उरूज पर पहुंच जाती हैं। मीठी ईद से पहले जो कैश स्नैचिंग की वारदातें उरूज पर पहुंच जाती हैं। और जैसे मौसम होता है वैसे चोर भी पूरे पाकिस्तान भर से लोग जो है कराची में भीख मांगने भी आते हैं और चोरी करने भी आते हैं। लेकिन पुलिस ऐसे जराइम पेशा अनासर को काबू करने में नाकाम नजर आती है। गुज़श्ता साल भी मवेशियों से भरे हुए ट्रक और गाड़ियां लूटी गई थी। और जो इन वारदातों में मुलव्विस, जो मवेशी चोरी की वारदातों में मुलव्विस है, ये स्पेसिफिक ग्रुप होता है। ये हर शख्स इनको चोरी नहीं कर सकता क्योंकि जानवर शोर मचाते हैं, इतना आराम से उनको आप गाड़ी पर लाद नहीं सकते। और इस गिरोह का एक जो मुल्जिमान है, सबसे बड़ी बात पुलिस को पता भी होता है कि इनके पीछे कौन है। एक बड़ा मुल्जिम मवेशी जो चोरी की वारदातों में बड़ा मुलव्विस है, मुल्जिम है, वो सुरजानी के इलाके में रहता है, लेकिन पुलिस उसको गिरफ्तार करने में बिल्कुल नाकाम नजर आती है। ये जो वारदात हुई थी ये गुलिस्तान जौहर का ब्लॉक 8A है, जहाँ पर CCTV फुटेज में भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये वारदातें की गई। कराची में जिस वक्त मवेशी मंडी कायम की जाती है, जो पहले सुपर हाईवे पर होती थी, अब नॉर्दर्न बाईपास पर है, तो जो नफरी अगर तैनात की जाती है, आप उनको देखें, एक रास्ता वो है जो गुलशन मेमार से होता हुआ अंदर से जाते हैं और मेमार मोड़ के सामने आप जाते हैं तो मवेशी मंडी आती है। एक वो है जो सुपर हाईवे से जाती है। लेकिन लोगों के दिल में अब एक खौफ बैठ गया है क्योंकि लोग जब ये जानवर अपने घर के बाहर खड़े करते हैं तो वो अब पहले तो काफी दिनों पहले लेकर आ जाते थे, लेकिन अब वो कुछ दिनों पहले लाते हैं और कोशिश करते हैं रात भर वो या उनके बच्चे बेटर है, क्योंकि उनको इस बात पर एतबार नहीं है कि पुलिस उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। कहीं से भी मवेशी चोर आते हैं, जानवर ले जाते हैं, स्नैचर आते हैं, कैश ले जाते हैं, मोबाइल मोटरसाइकिल लिफ्टर आते हैं, मोटरसाइकिल ले जाते हैं। तो पुलिस ओवरऑल अगर देखा जाए तो मजबूरी तौर पर वारदातें रोकने में नाकाम नजर आती है। अगर किसी शख्स को कोई जानवर मवेशी मंडी से लेना हो तो वो कहता है कि मैं 10-20 हज़ार 50 हज़ार महंगा ले लूं, लेकिन अपने घर के पास लूंगा। अब ये सूरत हाल हो गई है। जी बहुत शुक्रिया नज़ीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और कहने को ये वही जौहर है जिसका कंपैरिजन बार बार मेयर साहब लाहौर के साथ करते हैं, उसी जौहर से 25 जौहर की नहीं तो पूरे कराची का जी सारा मामला है। वैसे साइम, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही थी। वो सवाल मेरा ये था कि अब सिंस यू आर इन कराची, कितने आपको 2 साल हो गए माशाल्लाह, तकरीबन 2 साल होने का, तो आपने क्या इरादा किया है कुर्बानी के लिए? कुर्बानी का हाँ। तो पिछले 1 साल से जो कुर्बानी दे रहे हैं वो कम है। मतलब इस इन्फ्लेशन के अंदर, इस महंगाई के दौर में क्या करना है? इंसान खुद जानवर बना हुआ है तो जानवर का क्या करे? नहीं, आप बताएं ना मुझे, मंडी इतनी तेज है, लाख सवा लाख से तो एक नॉर्मल एवरेज बकरा शुरू हो रहा है, तो कैसे खरीदेगा जिसकी तनख्वाह बेचारे की 50,000 तो आप है, भी 60,000 काम करें है। ना, लोगों की तरह वेट करें कि आखिर में दाम अगर गिर जाते हैं तो फिर आप ट्राई कीजिए। वही बात ना, पूरे कराची में हम देख रहे हैं कि वो एक रौनक होती थी ईद से पहले मंडियों की, और लोग घरों के बाहर रहते थे, जानवर बंधे होते थे। कुछ भी नहीं है इस दफ़ा, सुनसान है, सड़कें सुनसान है। मैं आई एम टेलिंग यू फ्रॉम एक्सपीरियंस। यही पिछला साल था, पिछले साल अच्छी खासी गहमा गहमी थी। इस साल बकरा ही 1.5 लाख से शुरू हो रहा है, तो क्या खरीदने किसने बड़ा जानवर। अच्छा जी, एक आपके साथ अपडेट है, खबर है, वो शेयर कर लेते हैं। गुज़िश्ता रोज़ ज़िला मस्तोंग में वाक़या पेश आया था, पास कस्टम वेयर हाउस में जो लगी आग थी, उस हवाले से बताया जा रहा है उस पर काबू पा लिया गया है। और आग गुज़िश्ता रोज़ दिन 11 बजे लगी थी और रेस्क्यू ज़राए बताते हैं कि आतिशज़दगी के बायस 37 अफराद झुलस कर ज़ख्मी हो गए थे। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड और PDMA की टीमें मौजूद हैं। ये वहाँ के मनाजिर कल के हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त आग लगी हुई थी, लेकिन आप सोचें कि कितने लोग इसमें झुलस कर ज़ख्मी हुए हैं।
अतिया अकरम हमारी नुमाइंदा साथ हैं, उनसे ज़रा सूरत हाल जान लेते हैं। अतिया, सबसे पहले तो जो लोग ज़ख्मी हुए उनके बताइएगा कैसी इस वक्त हालत है, दूसरे क्या मज़ीद आपके पास इस हवाले से अपडेट्स हैं? जी सदफ, सिचुएशन ऐसी है कि गुज़िश्ता रोज़ से लगी हुई आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक जो है वो 80% आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त मैं जिस सिचुएशन में खड़ी हुई हूँ वहाँ पर ताहद्दे नज़र धुआं ही धुआं है और अंदर वेयर हाउस में जितना सामान है वो अभी भी जल रहा है और धमाके होने की आवाज़ें आ रही हैं। ट्रैफिक के लिए रोड को खोल तो दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर सूरत हाल बहुत ज़्यादा कशीदा है, क्योंकि केमिकल्स वाले ब्राउज़र भी गुजर रहे हैं और आग बहुत जो है ना अभी तक भी यहाँ पर लगी हुई है वेयर हाउस के अंदर। और जहाँ तक ज़ख्मी होने वालों के हवाले से आपने बात की, तो सदफ जो 37 अफराद ज़ख्मी हुए थे उन्हें BMC और उसके साथ जो है दीगर हॉस्पिटल्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनके बर्न वार्ड्स में दाखिल कर दिया गया है। उनकी सूरत हाल कदरे पहले से बेहतर है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर जो मनाजिर हम देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सूरत हाल परेशान कुन है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ से अब तक 24 घंटे हो गए हैं और 24 घंटों में फायर ब्रिगेड की यहाँ जितनी गाड़ियाँ थीं और जो कुछ था, अभी भी जब मैं ARY की टीम यहाँ पर पहुँची तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ 1 किलोमीटर दूर खड़ी हुई थी और वेयर हाउस में आग लगी हुई थी। इलाका मकीन जो है वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वेयर हाउस से जो गाड़ियाँ और जो सामान बाहर जला हुआ निकाला गया है वो गाड़ियाँ भी लेकर जा रहे हैं। इंतज़ामिया हमें यहाँ पर मुतहर्रिक नज़र नहीं आ रही। अभी भी मेरे अकब में बहुत ज़्यादा धुआं है और यहाँ पर बात करना तक मुश्किल हो रहा है, इवन सांस लेने में बड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। सूरत हाल बहुत ज़्यादा कशीदा है। लोगों से हमने बात की तो जिनका सामान अंदर पड़ा हुआ था वो बहुत ज़्यादा परेशान है और उनका कहना ये है कि इंतज़ामिया इस हवाले से कोई इक़दाम करती हुई नज़र नहीं आ रही। आग पर अब तक काबू ना पाया जाना इंतहाई तशवीशनाक है और बहुत से शकूक व शुबहात को भी जन्म दे रहा है, क्योंकि जो हमारा महकमा कस्टम है वो एक बहुत बड़े स्कैंडल का शिकार है और अगले महीने उसका ऑडिट होने जा रहा था। वेयर हाउस में लगने वाली आग जो है लोगों के मुताबिक और गुड्स जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके मुताबिक ये उसी का शाखसाना भी हो सकती है और उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि फ्रांजिक करवाया जाए, क्योंकि उनके मुताबिक यहाँ पर मौजूद सामान जो था उसमें से बहुत बड़ी तादाद पहले से ही है जो है वो यहाँ से मुंतकिल कर दी गई थी और यहाँ पर जो सामान था वो शवाहिद को मिटाने के लिए जलाया गया है। अभी भी मेरे अकब में फायरिंग का सिलसिला, जी बिल्कुल, मैंने लोगों से बात की, यहाँ पर गुड्स वाले खड़े थे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि गुज़िश्ता माह जो है महकमा कस्टम के ऊपर 400 किलोग्राम चांदी को जो है वो शीशे में तब्दील करने का स्कैंडल हुआ था और इसके ऊपर बाकायदा इंक्वायरी बिठाई गई। कस्टम कलेक्टर समेत चार जो एहलकार थे उनको इसमें मुलविस पाया गया और उनको जो है वो मुअत्तल भी किया गया और उन पे इंक्वायरी भी जारी है। राइटली सेड। अतिया अकरम हमें तमाम सूरत हाल से अपडेट कर रही थी और उनकी बात आपने सुनी। 37 अफराद इस आग में झुलस कर जख्मी हुए हैं, उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए अभी देखें धुआं अभी भी है और अभी भी जहाँ से वो हमें रिपोर्ट कर रही है सूरत हाल हमें ऐसे ही नजर आ रही है। दुआ गो है कि जल्द इस पर काबू पाया जाए। आमीन आमीन। मूविंग फॉरवर्ड जनाब, अब आपको जरा किला रोहतास पाकिस्तान के 10 अहम तारीख़ी किलों में शुमार होता है और उसके हवाले से भी आपको ज़रा बताएं कि ये मंसूबा 3 साल में मुकम्मल होगा, जिसकी तकमील पर सयाहों को जदीद सहूलियात मुयसर होंगी। तो किला रोहतास को टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने के लिए काम जारी है। इस बारे में मजीद बता रहे हैं नवीद भट्ट इस रिपोर्ट में। आइए देखते हैं। किलोमीटर फसील, 12 दरवाजे, 2500 किंगरे, शाही मस्जिद, पौलियाँ, हवेली मान सिंह, रानी मल, फांसी गार्ड, शाही इमाम, ये है जलम का तारीखी किला रोहतास। जिसकी तामीर शेर शाह सूरी ने 1541 में शुरू की, जो 7 साल में मुकम्मल हुई। ऐदे रफ्ता के साथ ये किला शिकस्तो रीख का शिकार होकर वीराने का मजल पेश करने लगा। किला रोहतास विजिट के लिए अंदरून व बैरून ममालिक से लाखों सयाह आते हैं। सफाई के हवाले से बेहतरीन काम किया गया, इसलिए ज्यादा सफाई देख कर ना दिल को सुकून हुआ। जैसे पुराना था किला उस तरफ लेके जाने की कोशिश। पंजाब हुकूमत ने पहली बार किला रोहतास की बहाली और तज़य्युनो आरائش के लिए तकरीबन 2.5 अरब रुपए के फंड फराहम किए हैं। ये मंसूबा 3 सालों में मुकम्मल होगा। जिला जलम के जो हिस्से में फंड आए हैं वो तकरीबन 224 करोड़ हैं, जिसमें दफ्तर नए बनने हैं, पार्किंग नई बननी है,
वाशरूम नहीं बनने हैं और इसके अलावा दफ्तर म्यूजियम जो है वो बनना है। जितना भी ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब काम कर रही है, उम्मीद है कि सियाह को मुतवज्जो का एक मरकज़ बनाए, उनके लिए फैसिलिटीज़ भी बनाई जाएंगी। किला और खास के मुख्तलिफ मकामात आज भी पुराने वक्तों की शान शौकत की दास्तान सुनाते हैं। सैकड़ों साल कदीम तारीखी किला अरतास की दिलकशी, आला कारीगरी और अजीम फन तामीर आज भी सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते नजर आती है। कैमरा टीम के साथ नवीद भट्ट, ARY न्यूज़, जेएलएम। चलिए जी, यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं। इस ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और जब सेहत आमा की बात हो और जो इस वक्त इश्यूज चल रहे हैं वो हम डिस्कस ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि उन चीज़ों को हाईलाइट किया जाए, उसका सोल्यूशन भी अगर है तो आपके सामने रखा जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा है और जैसे जैसे ईद करीब आ रही है सबको अंदाज़ा है मई का महीना बड़ा गर्म होता है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं जो गैस्ट्रो के केसेस हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। अस्पतालों में बड़ी तादाद में मुतासरा मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं। माहिरीन ये कहते हैं कि ये गर्मी में ये बीमारी ज़्यादा तेज़ी से फैलती है क्योंकि इस मौसम में जो जरासीम होते हैं वो खुराक के ज़रिए, पानी के ज़रिए बड़ी आसानी से जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे बाहर से आपने कुछ खा लिया, जूस पी लिया, तो वो अगर सफाई का वहाँ पर ख्याल नहीं रखा गया तो फिर आपकी सेहत उससे मुतासिर होगी और ज़ाहिर है जो पेट की बीमारियां हैं फिर आप उसमें मुब्तला हो जाएंगे। जैसे कि आप नॉजियस फील करेंगे, आपको वॉमिटिंग होगी, आपको पेट में दर्द होगा, जिसम में पानी की कमी नुमाया है और वो डिहाइड्रेशन आपको महसूस होगी, लिप्स आपके ड्राई होंगे। अच्छा, अगर बरवक्त इलाज ना किया जाए तो कमज़ोरी और पेचीदगियों का बायस बन सकता है। तो जनाब अब बरवक्त इलाज क्या है, कैसे है और सिम्टम्स क्या होंगे? गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अब्दुल्ला बिन खालिद। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर प्रोग्राम। गैस्ट्रो बीमारी की बुनियादी वजूहात क्या हैं और सिम्टम्स क्या हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। बात यह है कि ये जो गर्मियाँ हैं ये बहुत अच्छा मौजू है इस वक्त, और ख़ास तौर पे सबको ध्यान देना ज़रूरी है। गर्मी में बाज़ बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से फ्लरिश करते हैं और वो बैक्टीरिया होते अनहाइजीनिक कंडीशंस में हैं। होता क्या है, गर्मी है जनाब, वो जो गर्मी में पसीने आ रहे हैं और इंसान चाहता है कि कोई ठंडी चीज़, कोई मशरूब उसको मिले। अब वो जो बरवक्त जो चीज़ मिल रही होती है और सस्ती है उनकी तरफ लपकते हैं। गन्ने का जूस हो गया जनाब, ये तरबूज का शरबत हो गया, फालसे का शरबत हो गया, यही वो चीज़ें हैं जहाँ जो अनहाइजीनिक होती हैं सबसे ज़्यादा, और इनमें बैक्टीरिया बेइंतहा तादाद में होते हैं। अब जब ये वो बैक्टीरिया पेट में आ जाते हैं तो फिर डिहाइड्रेशन यानी उल्टी, जैसे कि आपने बताया, नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये होता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, चंद साल पहले का डेटा था, देखा गया कि पूरी दुनिया में 4.5 लाख लोग मरे हैं इस पेट की सिर्फ गैस्ट्रोएंटराइटिस से। इसको हम अपनी ज़बान में गैस्ट्रोएंटराइटिस कहते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा ख़तरा तो छोटे बच्चों को होता है। छोटे बच्चे, 5 साल से नीचे के बच्चे, ये तो सर्वाइव ही नहीं कर पाते। बड़े तो चलो ORS पी लेते हैं। गैस्ट्रोएंटराइटिस कब ज़्यादा ख़तरनाक सूरत इख्तियार करता है? गैस्ट्रोएंटराइटिस उस वक्त ज़्यादा ख़तरनाक सूरत इख्तियार करता है जबकि डिहाइड्रेशन की कैफियत होने लगे और बर वक्त ट्रीटमेंट ना की जाए। उल्टियाँ हो रही हैं, डायरिया हो रहा है और वो जनाब घर पे ही उनको रखा हुआ है, वो पानी वानी पिला रहे हैं और जूस पिला रहे हैं, शरबत, वो मज़ीद वॉमिटिंग हो रही है। उससे बाज़ औक़ात जब ये ज़्यादा होता है, हमने खुद अपनी आंखों से गुर्दे फेल होते हुए मरीजों को देखा है जिनको बर वक्त डिहाइड्रेशन, बर वक्त रीहाइड्रेट ना किया जाए। किस वक्त आपको होशियार हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए कि बस अब डॉक्टर के पास हमें फौरी तौर पर पहुँचना? जी हाँ, ये तो 1-2 दफ़ा मोशन हो गए, आपने ORS वगैरह पी लिया, थम गए, ठीक है। लेकिन जब उल्टियाँ लग गई, कमज़ोरी आ गई, निढालपन, नकाहतपन आ गया, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाइए ताकि वो रीहाइड्रेट करे। एक बात तो ये हुई। लेकिन छोटे बच्चों में तो 1-2 वॉमिटिंग और 1-8 डायरिया ही बहुत होता है उनको गिराने के लिए। उनमें तो 1-8 वॉमिट और मोशन ही हो जाए फ़ौरन। छोटे बच्चों में तो बिल्कुल ये चीज़ यानी बर्दाश्त नहीं करनी लेकिन चाहिए। आपने से 1-2 कहा तो घर में भी कुछ इलाज किया जा सकता है? यकीनन जो घर में सबसे बुनियादी इलाज होता है वो ORS होता है कि ORS हर जगह अवेलेबल है, बच्चों यानी मुख्तलिफ नामों से आता है और बहुत अच्छा सलूशन है। इनफैक्ट देखा ये गया कि बांग्लादेश में उन्होंने यानी बहुत रिमोट एरियाज़ में ये एजुकेट किया लोगों को कि ख़ास तौर पे बच्चों की माओं को कि भाई बर वक्त रिहाइड्रेट करें ORS के ज़रिए से, और देखा गया कि अमवात बच्चों की बहुत बेहतर हो गई, यानी कि उनकी शरह बहुत नुमाया अंदाज से कम हुई। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाह रही हूँ, ORS का ताल्लुक सिर्फ इस सिचुएशन से नहीं है,
गर्मी डिहाइड्रेशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, घर में होना चाहिए। होता क्या है कि डिहाइड्रेशन से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस होते हैं, यानी नमकियात खराब होती हैं, तो ये नमकियात को रिप्लेनिश करने का बहुत बेहतर जरिया है। हमारे यहाँ पर बच्चे बड़े खुशी से घर से पैसे लेके जाते हैं स्कूल कॉलेजेस, वहाँ जाके फिर समोसे पकौड़े नान टिक्की गंदी गंदी केचप के साथ खाते हैं, उसको बड़ा इंजॉय करते हैं, और फिर जब घर आते हैं तो फिर उसके बाद चक्कर भी आ रहे हैं, पेट अब माँ बाप को लगता है फूड पॉइजनिंग हो गई, वो घर में इलाज करने लग जाते हैं, मखसूस एक सिरप आता है और एक गोली आती है, वो दे जाते हैं बच्चों को, दिए जाते हैं। ये कितना ख़तरनाक है। बात ये है कि वो जो यानी जितनी भी अनहाइजीनिक चीज़ें हैं ना, उनमें मज़ा भी बहुत ही होता है, जितना गलीज़ उतना लजीज़, जितना गलीज़ उतना लजीज़। तो वो जनाब उसकी टेम्पटेशन, और बच्चों को कौन समझाए। अब उसमें ये कि बच्चों को, लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है क्योंकि छोटे बच्चे हैं, खुदा न खास्ता ख़ास तौर पे इस सीज़न में, और खुदा न खास्ता इसमें मुलविस हो जाए और घर पे ही इलाज होता रहे और डायरिया वॉमिटिंग होती रहे, ये बहुत ख़तरनाक है। इसलिए यानी शुरू में तो चलो ORS वगैरह दे दिया, बच्चे की तबीयत संभल गई, बहुत अच्छा, लेकिन अगर ये वॉमिट वगैरह रही, फ़ौरन जो है वो डॉक्टर के पास रुजू। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा जो बहुत अहम है पब्लिक के लिए, हेपेटाइटिस के जो जरासीम है ना, हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस E के, वो भी इन्हीं अनहाइजीनिक चीज़ों में होते हैं, और खुदा न खास्ता हेपेटाइटिस E प्रेग्नेंट हामला ख़वातीन में हो जाए, इसका चांस होता है कि माँ भी गई बच्चा भी गया। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है प्रेग्नेंट ख़वातीन में हाइजीन का लिहाज रखना हेपेटाइटिस से बचाव के लिए। एक चीज़ और बताइएगा, गर्मी में खाना भले आप घर में भी खा रहे हो, अगर खाना बाहर रखा है प्रॉपर तरीके से, आपने उसे रेफ्रिजरेट नहीं किया, वो भी जल्दी ख़राब होने का ख़तरा होता है, तो ये भी एक फैक्टर होता है। इनफैक्ट ये तो फैक्टर है ही, जब आपने रेफ्रिजरेट किया और लाइटें चली गई लंबे वक्त के लिए, तो अभी बहुत एहतियात करनी होगी इसमें। इसलिए बहुत सबसे सेफ तो ये है कि ताज़ा पकाएं, ताज़ा खाएं, जितनी खाना है उतनी क्वांटिटी बनाएं। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आज के सोशल मीडिया पर एक बड़ी खबर गर्दिश कर रही है, अब वो उसकी तस्दीक मैं नहीं कर सकता, लेकिन सोशल मीडिया पर है और बड़ी वायरल हो रही है। भारत में किसी ने तरबूज खाया, बिरयानी के बाद तरबूज खाया, तो उनकी मौत वाकई हो गई। ये ऐसे होता है? बात ये है कि इसकी कोई साइंटिफिक एविडेंस तो अभी तक, ये सोशल मीडिया पे तो यकीनन है, इस ताहाल कोई साइंटिफिक एविडेंस इसका है नहीं कि ये जी, अब मुमकिन है वो इन्फेक्टेड हो, मुमकिन है उसमें क्या ऐसी चीज़ हो, अदरवाइज तो ये सेफ है। मतलब कॉम्बिनेशन ठीक है, जनरली कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, प्रोवाइडेड ये कि वो जो बिरयानी है, वो जो तरबूज है, वो यानी सड़ा हुआ ना हो, वो अनहाइजेनिक ना हो, प्रॉपर हाइजीन हो, तो इशू नहीं। अब आजकल मंडियों का दौर भी चल पड़ा है ईद कुर्बान से कबल, और हम बच्चे जाते हैं, बड़े जाते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन वहाँ पर गंदी बर्फ़ में मशरूबात पीते हैं, गन्ने का रस, मक्खियाँ ऊपर टहल रही होती हैं, रंग बिरंगे जूस, कोई इमली वाला, कोई इसलिए कि वो इतनी देर टाइम स्पेंड करते हैं तो उन्हें प्यास डिहाइड्रेशन फील होती है, प्यास लगती है। आप सोचिए कि हमारे पास जो जॉन्डिस के पेशेंट्स आते हैं ना, एक्यूट हेपेटाइटिस के, आम तौर पर ये फैला हुआ है कि इसका इलाज तो गंडेरी के जूस में होगा। तो सबसे पहले तो हम ये मना करते हैं, भाई तुम कुछ भी कर लो, ये गंडेरी के जूस पे मत जाना। अच्छा। जितना हेपेटाइटिस और के जरासीम और जितना जॉन्डिस के जरासीम इन गन्ने के जूस की जो कंडीशंस देख रहे होते हैं आप, इनमें थोक के हिसाब से भरा हुआ होता है, वो शायद बाहर ना हो। जॉन्डिस में तो पिलाते ही शुगर केन का जूस, पिलाते ही शुगर केन का जूस है, और इतना पिलाते हैं कि एक मेरे पेशेंट को तो शुगर हो गई बेचारे को, आया जॉन्डिस के साथ शुगर हो गई, और वो उसमें ही जॉन्डिस के सारे जरासीम पाए जाते हैं। अच्छा, तो अब जब बहुत एहतियात की जरूरत है इस गन्ने के जूसों को, जो अब तरीका। जब जरा हम ये जिक्र कर ही रहे हैं तो थोड़ा हमें बता दें, मवेशी जो हैं उनका भी इस गर्मी में ख्याल किस तरह रखें, उन्हें भी गर्मी धूप कैसे बचाएं जरा। जनाब ये बहुत अहम सवाल है, और मौजूदा दौर में तो बहुत ही, खास तौर पे जब हम एंथुजियाज्म देखते हैं यंग जनरेशन का कि सख्त धूपों में भी वो टहलाने से बाज नहीं आते, तो ये ज़रूरी है कि एक तो टहलाने में कम से कम वो कुछ मौसम को ठंडा होने का इंतज़ार कर लें, या तो सुबह या रात का, और बेचारों पर रहम करना चाहिए कि पानी ज़्यादा पिलाएं, दरख्त के छाँव के नीचे जो सबसे बेहतर छाँव है उसमें उनको खड़ा करें, चूँकि ये वो जब वहाँ अपने दूसरे जानवरों के साथ हैं तब तो फिर भी स्टेबल होते हैं, जब वो हमारे पास जब यहाँ आ जाते हैं तो उनका प्रॉपर इतना ख्याल जिस तरह से उनको चाहिए नहीं रखा जाए, अपने मज़े में उनको टहलाते उन बेचारों पर ये तो थोड़ा सा मजे में, शौखी में जाके मोहल्ला गली दिखा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये एक बात खास तौर पर सिंध में मुकीम शहरी लोगों के लिए है कि आप देखें जानवर जो आ रहे हैं ना, वो मोस्टली 70 to 80% वो ट्रैवल करके ऑलरेडी आ रहे हैं जानवर यहाँ पर बड़ी बड़ी ट्रकों में। अब वो जब आप घर लेके आते हैं मंडी से, तो मंडी की वो मुशक्क़त अलग है जानवर के ऊपर, उसके बाद जब घर आते हैं, घर आते साथ ही पहले 4 मोहल्ले घुमाते हैं हम अपने जानवर को। जानवर पर रहम जिस दिन आप उसको लेकर आए थोड़ा सा रेस्ट करने दें, फिर अपने शौक तमाम पूरे कर लीजिएगा। चलें जी, आगे बढ़ते हैं, आगे शॉर्ट ब्रेक पे जाएंगे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक वंस अगेन। बात करते हैं जी जुर्मानों के हवाले से। एक बड़ी खबर है, पंजाब हुकूमत ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर जो जुर्माने थे, भारी जुर्माने थे, उसमें नुमाया कमी की है और मुख्तलिफ जराइम में कैद की सज़ा भी ख़त्म कर दी है। तो अब नया कानून क्या कहता है? ये कहता है जिसके मुताबिक लाइसेंस की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 50,000 और 1 लाख रुपए से कम करके 5 से 10,000 कर दिया, बहुत ज्यादा कम कर, जबकि कैद की सजा खत्म कर दी गई है। इसी तरह वन वे खिलाफ वर्जी, कम उम्र ड्राइविंग, बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ी चलाने और पब्लिक सर्विस गाड़ियों में ओवरलोडिंग पर भी जुर्मानों में नुमाया कमी कर दी गई है। हुकूमत के मुताबिक ये इकदाम अवाम को रिलीफ देने के लिए किया गया है, जबकि पुराना ऑर्डिनेंस मनसूख करके नया कानून नाफिज कर दिया गया है। जो मजीद तफसीलात जान लेंगे एवाई न्यूज़ के नुमाइंदे बाबर खान से। बाबर, बताइएगा कितनी कमी की गई है और किन किन जुर्मानों पे कमी की गई है? देखिए जी, अवाम के लिए कुछ तो थोड़ी सी खुशखबरी आई है, क्योंकि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे और महंगाई की वजह से पिसे हुए मुश्किलात में शिकार अवाम ट्रैफिक जो जुर्माने थे उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे, जिस पर जो है गवर्नर पंजाब जो हैं उन्होंने बिल जो था उस पर दस्तखत कर दिए हैं 2026 तरमीमी बिल पर। इस तरह अब 2025 जो आर्डिनेंस है वो उसको मनसूख कर दिया गया है। पहले जो वन वे की खिलाफ वर्जी पर 50,000 और 1 लाख रुपये जुर्माना, जबकि सज़ा भी दी जाती थी, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होता था, उनका रिकॉर्ड मरतब हो जाता था, जिसके ऊपर ये पर्चा दर्ज होता था। अब उसमें कमी कर दी गई है और 50,000 से कम करके 5,000 या 10,000 जुर्माना कर दिया गया है, जबकि सज़ा बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है, सज़ा में कमी की गई है। इसी तरह ओवरलोडिंग वाले जो हैं, जो छत पर बसें जो बिठाते हैं, जो अंदर बसों के ऊपर जो लोगों को बिठाते हैं, जहाँ अंदर ज़्यादा लोग बिठाते हैं, उन पर जुर्माना रखा गया है, लेकिन उसमें भी कमी की गई है। मोटरसाइकिल सवार बहुत परेशान थे, हेलमेट की वजह से या किसी वजह से भी उनको जुर्माना बहुत ज़्यादा किया जाता था। स्टूडेंट जो हैं उनको 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना किया जाता था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। और इस तरह जो अब कमी नुमाया तौर पर की गई है, लेकिन अवाम जो है, अवाम के लिए ये भी है कि वो भी कानून की पासदारी करे। ये ना हो कि जुर्मानों में कमी हुई है तो वो भी कानून की खिलाफ वर्जी करते फिरे। लेकिन अभी तक इस बिल पर अमल दरामद शुरू नहीं किया गया। ट्रैफिक जो वार्डन है उनसे हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि अभी उन्हें कोई ऑर्डर नहीं आया, अभी जो जुर्माने कम करने का ऑर्डर आएगा तो फिर अमल दरामद भी शुरू हो जाएगा। बाबर, बहुत शुक्रिया आपका। और चले, अवाम को रिलीफ मिला, बहुत ज़्यादा जुर्माने थे और ज़ाहिर है ऑलरेडी लोग पेट्रोल की मद में इतने पैसे दे रहे हैं। ज़रा बात कर लेते हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान का टेस्ट मैच जारी है, चौथा दिन है और पाकिस्तान के हवाले से बांग्लादेश की पहली इनिंग्स में हमने देखा उन्होंने 413 रन बनाए थे, फिर पाकिस्तान ने अपनी इनिंग्स में 386 रन बनाए और इस वक्त बांग्लादेश जो है वो तकरीबन आप समझ लें 102 रन से लीड कर रहा है, थोड़ा शायद नंबर आगे पीछे होगा। और पाकिस्तान में हम देख रहे थे अजान उवैस, उन्होंने अपने करियर की टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले पाकिस्तान के 14वें बैटर बन गए हैं। तो जरा बात कर लेते हैं, नुमाइंदे खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ है। शाहिद साहब, जरा बताइए जरा दोनों इनिंग्स का थोड़ा सा हमें ओवरऑल तज्जिया दीजिएगा, कैसी रही और अब आपको क्या लगता है चौथे दिन में क्या एक्सपेक्टेशन रखी जाए? देखें, पाकिस्तान की मैनेजमेंट को पिच रीड करने में थोड़ी गलती हो गई। ये पिच, इस पे घास ज़रूर थी, लेकिन ये घास सिर्फ दिखावे की थी, धोखे की घास थी। इस पे डर कर आपने पहले बैटिंग बांग्लादेश को करा दी, 3 फास्ट बॉलर खिला लिए। ये 3 फास्ट बॉलर की पिच नहीं थी, ये 2 फास्ट बॉलर से भी आपका काम चल जाता और आपको दूसरा स्पिनर साजिद खान खिलाना चाहिए था। फिर जब आपने 413 रन पर रोक लिया बांग्लादेश को, आपने लीड नहीं ली, आपने उल्टा 27 रन की उनको लीड दे दी। अगर पाकिस्तान यही 100-125 रन की लीड लेता तो पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीतने की पोजीशन में होता। अब अगर बांग्लादेश ने 225 या 250 रन करके पाकिस्तान को दिए तो आखिरी दिन पाकिस्तान को इसलिए मुश्किल होगी कि बांग्लादेश के 2 स्पिनर हैं, एक मेहदी हसन मिराज जिन्होंने पहली इनिंग्स में 5 विकेट ली और दूसरे उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर ताइजुल इस्लाम। तो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने इतनी अच्छी रीड नहीं की पिच, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा। फिर बड़े बैट्समैनों ने, जो सीनियर बैट्समैन हैं, रिजवान हो गए उसमें, और फिर जो 2 नए बैट्समैन हैं उन्होंने गलत शॉट खेलकर आउट हुए। अगर वो शॉट ऐसे ना मारते तो पाकिस्तान को 100-125 रन की लीड मिलती। अजान ओवैस की जितनी भी तारीफ करें कम है। वो 2 डोमेस्टिक सीजन में पाकिस्तान के बड़े अच्छे स्कोरर रहे हैं। दोनों डोमेस्टिक सीजन में अब्दुल्ला फजल ने अच्छी बैटिंग की। ये है खुलासा इस टेस्ट मैच का। अच्छा, और शाहिद भाई, आपके ख्याल में पिच और कंडीशंस आज पाकिस्तानी बॉलर्स की मदद करेंगी? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसलिए कि अब ये पिच बिल्कुल डेड हो गई है।
آپ کو دونوں اسپنر کھلانے چاہیے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ بنگلہ دیش کے پاس اچھے خاصے لیفٹ ہینڈر ہیں. ساجد خان کو نہ کھلانا ریگریٹ کرے گا پاکستان کی ٹیم مینجمنٹ. ظاہر فیصلے لیتے ہیں, سب مشورہ کرتے ہیں, باہمی مشورے سے فیصلہ کرتے ہیں, لیکن ساجد خان کو اس پچ پر کھلانا چاہیے تھا. وکٹ اتنی مدد نہیں کر رہی. پاکستان کا ایک اسپنر ہے, دوسرے اسپنر آغا سلمان ہے جو اتنی زیادہ بالنگ نہیں کرتے, تو پاکستان مشکل میں پھنس سکتا ہے. بظاہر یہ کہ اس کو ٹیسٹ میچ کو ڈرا کرنا چاہیے پاکستان. اچھا, اور شاہد صاحب ذرا بیٹنگ کی طرف بھی اپنی آ جاتے ہیں, کیونکہ اگر ہم پچھلے PSL میں بھی دیکھیں, اس سے پہلے بھی دیکھیں, محمد رضوان ٹیم کو جس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ وہ آ کر ذرا کچھ سپورٹ دیں, سہارا دیں, تو وہ نہیں, ان کی پرفارمنس نہیں آ رہی ہے. ٹیسٹ میچ میں بھی یہی حال ہے, جبکہ جب ان کے اسٹرائک ریٹ کی بات ہوتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے جی T20 کے پلیئر نہیں ہیں, تو ون ڈے اور ٹیسٹ میں تو بہت مارجن ہوتا ہے. تو یہاں پہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ رضوان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں, رضوان اچھے پلیئر ہیں. کل انہوں نے 19 سینچری ضرور بنائی, ایک اچھی پارٹنرشپ 119 رنز کی سلمان آغا کے ساتھ بنائی تھی, لیکن جس طرح وہ شاٹ مار کر آؤٹ ہوئے ہیں وہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ شاٹ تھا. رضوان اس سے اچھے پلیئر ہیں. ٹیم میں نے کئی ٹیسٹ میچ پاکستان کو جتوا چکے ہیں. سینچری انہوں نے پنڈی میں 2020 میں جنوبی افریقہ کے خلاف بنا کر پاکستان کو ٹیسٹ میچ میں کم بیک کروایا اور جتوایا پاکستان کو. لیکن کل جس طرح وہ شاٹ مار کر آؤٹ ہوئے, ان کو یقیناً اس کے اوپر بہت ہی غم و غصہ ہوگا. ٹیم مینجمنٹ کو بھی غم و غصہ ہوگا. اگر رضوان تھوڑی دیر اور کھڑے ہو جاتے تو پاکستان کو کم از کم 70-80 رنز کی لیڈ مل جائے. اچھا, کم از کم 70-80 رنز کی لیڈ. ویسے کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو اگر یہ ٹیسٹ ہمیں جیتنا ہے, ویسے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈرا ہونا چاہیے, لیکن بنگلہ دیش کو ہم کہاں تک محدود رکھ سکتے ہیں؟ کیا کچھ راستہ نکل سکتا ہے شاہد صاحب؟ ہمیں کم از کم ان کو 150-200 رنز کے اندر ریسٹرکٹ کرنا پڑے گا. اگر وہ 225-230 رنز بنانے میں کامیاب ہو گئے تو پاکستان کو مشکل ہوگی. جیسے میں نے کہا کہ 5ویں دن اس وکٹ پہ ٹرن ہوگا. کل ٹرن ہو رہی تھی بال مہدی حسن میراث کی, باؤنس بھی ہو رہی تھی, جو مشکل کریٹ کریں گے پاکستانی بیٹرز کے لیے آخری. اچھا, لاولی, تھینک یو ویری مچ. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, نمائندہ خصوصی برائے شاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ پچ تو خیر اب ڈیڈ ہو ہی گئی ہے, لیکن یہ گھاس بھی دھوکے والی گھاس تھی. دھوکے تو ہم نے سنے, مطلب گھاس جو ہے وہ دھوکے والی ہو, تو پھر آپ دیکھ لیں کیا صورتحال میچ کی بنتی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں جی اس میچ کا, اس ٹیسٹ میچ کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. گھاس سے مجھے یاد آیا پھر وہی بات, اب آپ نے میری دکھتی رگ چھیڑ ہی دی ہے. اگر اس گھنٹے کے اندر کاؤز اینڈ گوٹس بڑے ایکسپینسو ہو گئے جناب, سو دا اونلی قربانی آئی کین افورڈ ان دس اکانومی از قربانی آف مائی فیلنگز. یہ میرا بڑی ایک دکھتی رگ ہے, اور اب ہم پورا قربانی تک یہ چیزیں ڈسکس کرتے رہیں گے. آئی ہوپ کہ آپ لوگ میرے سے ریلیٹ کر پا رہے ہوں. چلیں جی, اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ, اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.